Okay, hello everyone. Hello Saket. Uh, Hi, Sarup. Welcome to our YouTube channel Simon Agriculture. So Thank you. here we are with our third session of If Not AFO Then What series. So I welcome you. I want to introduce to all the aspirants. This is Mr. Saket Kumar, currently working in Kotak Bank as a risk manager. So we'll start with first a basic brief introduction with Saket. Sure. Thanks, Sarup, for beautiful introduction. As my name is Sakit Kumar, I was born and brought up in Purnia district Purnia, Bihar. Basically, I have studied from the various two of the beautiful institutes of India, that is University of Agricultural Science, Bangalore, and another beautiful institute and top India's rank one institute, Indian Institute of Science, Bangalore. Then I got placement from that college itself in the Kotak Mahindra Bank Limited as a risk manager. So basically, pretty much it's going good. So I can say that life is smooth, not smooth before it was. Now it's going to be smooth, and hoping so. I want to let aspirants know that he is my fellow batchmate. We were having doing graduation from the same college. He is a good very great inspiration for all the students who are pursuing agriculture engineering. Basically, I want to tell the aspirants that Saket has done graduation from agri engineering. So Saket, I want to ask you being an allied graduate, like not a core BSc honors agriculture, what were your thoughts when you joined the college? What was your journey? So, before going to that, I want to share some flashback how I came to this institute, University of Agricultural Bangalore. Okay. So first Hmm. of all, like in class 10th, I was playing cricket, lots of playing cricket. So my father saw, and he saw that I was not focusing much on study, and he was pretty much Okay. focused on my study. That if I not do what I will do, because he was much pretty focused from childhood itself. He was working hard towards me, so he was much focused that I have to do something. So in class 10, he sent me to Fiji. He basically he did not told me that he filled the form of Fiji, and he filled the form of Fiji, and he sent me to South Delhi in Hodgepodge batch. So I was doing Okay. good there. I was doing good. I was in the top two batches of Fiji. I was performing Great. well. But I think one of the failure, or I'll say setback of me, was that I could not handle the pressure of the exam, which lagged in my J Advance exam. So I was completely trashed in J Advance. I could not qualify J Advance. But luckily, I had the good J main score, so I got opportunity in the IIT Patna and NIT Patna. Sorry, NIT Patna, Jadavpur University. I got the selection in the Jadavpur University. When I went to Jadavpur University now, with my father for the placement, my father saw something interesting. So interesting part was that many of the students were smoking in the campus. So my Okay. father told that you're not taking admission in this institute, just go Okay. back. And that time ICER exam, I had given the ICER exam, Indian Council of Agricultural Research exam. So Okay. I was not knowing whether I will go ICR or not. But at that time, my father also made mind you are going to ICR, do whatever you want to do there, or go back to Kota or Delhi and prepare again for the J advance. So this was the scenario. Okay. I was not interested because I think I was not that much confident at the time that I will be able to again study again 1 year for the to again the J advanced preparation. Again, I can crack. I do not have that much confidence at all at that time. So I thought, let's check this field, agriculture. I just searched Quora. What is agriculture engineering? What are the courses they study? So there was Okay. a 4 to 5 minutes video of agriculture in YouTube. I somehow, and there was some regarding like GATE. So they have mentioned that it's kind of easy exam. I was not knowing whether it's easy, but they mentioned that less of people attend this exam. So it's kind of easy and getting the top colleges. But I was not whether how hard it's prepared or nothing. I was knowing, just I was knowing that if I get into this college, I can give the GATE exam and get into the top institute. That's my plan. Because if you see anybody who has given a top exam like NEET or J Advanced, J Mains, who failed, na, they have little bit just, thinking inside their heart that I want to again get in that institute because why I could not get that institute. That was the kind of you can see in everyone's heart who have been failing this kind of exam for top where the only 1% student got selected this kind of exam. So this was scenario. So when I entered this institute, University of Agricultural Science, Bangalore, when I just selected this college because it was in Bangalore. Nothing apart from not Okay. nothing as there was a lot of colleges, but I selected this college as a top priority because it was Bangalore. And Bangalore is known like my if you talk about any engineering students, na, is Bangalore like a Hmm. silicon hub? There's some kind of aura. Yes. You Hmm. can agree. Like Silicon India, say Silicon City of the India. yeah, correct.
So if like mine is like, oh, this is the college. I don't know what the college will do. What I don't know about courses. What I am going to study. Nothing. Just my focus was Bangalore, and I can give the gate exam. That was the first priority. Okay. These are the things. So when I entered the campus, so my first introduction with the seniors. So we were called like introduction part where we were introduced to our seniors. So one of my seniors asked, "So why you came to the institute?" I told like how you just generally talk to someone your friends like gate exam. But at that time, I did not know the definition of gate also. I just Okay. told, oh, I want to give the gate. So I seniors asked, what is gate? I was not knowing. Just I came in like you are living in your bubble. That was like you are the small kids. Like how you the poverty stage. Mm-hmm. They are not knowing Mm. anything. Just you enter the campus. So that was my Mm. stage. But I was not knowing. Okay. So one and the courses come of agriculture, the horticulture courses. These all courses like again I am thrown back to biology, which I have because I have taken PCM. I was never Okay. interested in biology. Again, I am thrown back in agriculture, horticulture. I was like, what kind of courses I have selected? Mm-hmm. But one after a few of my friends who helped me, like whether you talk about if I talk about agriculture engineering batchmates, whether it's Vijay, Arpit, Birla, these are all friends. Whether you talk BSc guides also help me. Whether if the person is talking to me right now, or whether it's Akash or Rajveer, any friends if you talk, like these also like we are the golden badge. I think so. We are the golden badges of our Mm. batch. We are the golden Obviously. badge of our university. Like we Mm. missed each other because that was a kind of generosity of each people to talk to anyone. There was no such ego or something like came in between us whether talking. So it's kind of we can say it's the golden batch of our university who has really performed well in all the parts of our country. Whether it's say about if I'm talking this kind of officers which I'm talking currently now, or whether it's talk about me, Vijay, anybody you talk, I think we were the golden batches. Whether talk about Om Prakash also, never to forget that friend, that silent Mm. friend We are who too was lucky. We are too lucky. Like we are having such a like great friends and such a batch. We are like all correct. from different like parts of the country, and like we wholesome. We have created some great memories over there. And now everyone is doing really great in their career. So Correct. it feels like very we are very privileged maybe when we are very lucky maybe. So it was great. Like but as an aspirant, if I think Saket, like one basic question is there like why like is like come to an agri graduates like who is not from the core agriculture. So have chosen the agri engineering, okay, and you just like come here and like said that I would just want to prepare for gate. So from the beginning only you were have any thoughts like only particularly gate, or is there any other options were also there in your mind? So, like I came from the state Bihar. So if you know the Bihar pretty is known for UPSC. So Yeah, one time, UPSC and all the government yeah, sectors yeah, they have yeah. acquired. So one semester I tried for first sem only. I tried for UPSC. Let's see how I can go to. Gate was there in back Mhm. of the mind. Like I know that if I go in the third sem or second sem, I can prepare for that. I have that time. I was knowing that this time frame is perfect for the preparation of gate. Before that, I can try because our seniors was there. They were asking to. It's fine. You have the gate exam, but let's not make it fixed because might be you can clear the gate exam, but might it will not interesting for you to attend that course. Like if you go there also, if you're not enjoying the course, that's no point. Now. You have done that much hard work and getting to such institution and you're not interested at all. So that's a waste of pretty much of your time because this time is like 4 years of a BTech or BSc. It's kind of golden time. In that only you can change your entire journey or path. So that was so in first sim I tried UPSC. I did not claim because UPSC was come. I'm not trying to defame, but it's kind of Ratna that basically things you have to remember the things. That was I was not loving that Okay, part. because Then I you tried. also did love bio because of that. Yeah, that was so I never fond of UPSC. My parents still talks to me like try and Mhm. one time UPSC. My like I don't like the Ratna things. I remember the things. So I like then I tried Ratification. cat also. If you find that fascinating, that I tried cat also, but it's like. Mhm. But I was thinking like 4 years. If you're studying 4 years now, if you can use that 4 years only to get good in your part of your life, now that is easy for you rather than studying completely different things. So gate, if you Mhm. talk about gate or any other exam like A4 or any other exam, these all things like comprises all your 4 years study only. There is Mhm. nothing much different from the your 4 years study. If you talk gate like all the syllabus that is, you just have to focus on your pretty much on your study. You have to be a little bit work on your quantitative ability also, like be creative in your thinking, logic building. These are the works you need to do while studying. Now if you come like now coming back to a question, another important question, like the viewers will be thinking like how do I prepare the gate.
Might Like be also one of the question like I want to ask like कि basically I am from BTech agriculture. Okay, if I started my journey as in BTech agriculture, not from a University of Agriculture Science, from any other random college correct. which is accredited by ICR. But as a like student where like you got good guidance, you got like all the good seniors around yourself, like you also prepared very hard for that. बट ऐसा हो कि कहीं नॉर्मल कॉलेज है, बेसिक कॉलेज है, बट देयर Correct. एज अ स्टूडेंट मैं क्या सोच सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या करियर ऑप्शन है, मैं उस पर क्या क्या इनपुट दे सकता हूँ, सिर्फ मेरे पास गेट ही एक ऑप्शन है या फिर मैं और भी कुछ कुछ ऑप्शंस पिक कर सकता हूँ, या उन सब के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ जानना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम आपकी गेट जर्नी पे स्टार्ट करेंगे। श्योर श्योर श्योर। पहले मैं थोड़ा बेनिफिट बताता हूँ गेट का बेनिफिट्स क्या होता है ना। एक तो तुमको हम्म, स्कॉलरशिप मिल जाता है बेसिकली 12,400 नो बट इज गिविंग इन इंडिया। यू आर गेटिंग हम्म, फॉर 2 years 12,400 rupees, दैट्स अराउंड हम्म, 2,88,000। I calculated also numbers. यू आर वेरी गुड एट मैथ्स। 2,88,000. And also like various from gate na, I was the first batch, we were the first batch that gave the gate. And you have the direct selection of BI, Bureau of Indian Standards, direct selection. ओके, ब्यूरो ऑफ इंडियन uh, स्टैंडर्ड्स, what it was post a we can apply for? scientist B, scientist B. Scientist B, okay. it, This is it was also getting, you can yeah, also take as a career option like for correct, that. correct, correct. If you have given the gate Okay. exam, na, you are directly Mm-hmm. eligible based on the gate score. It was like 80% of your gate score and 20% of interview. But the Okay. seats are limited, like there will be around 2 to 3 seats. But if you are top 10, you have the chances to enter that means. That's such a prestigious opportunity you can get. And also, And like, I also want to like, sorry to interrupt, but I also want that aspirants know that you have like you are AIR 6, if yeah, I'm not wrong. Yeah, AIR 6 in the GATE examinations. So he was among the top 10. So please note that point, yeah. aspirants. So I will coming back to that only. So if Mm-hmm. not gate, na, I think AFO is a better option. AFO Okay. is a better option because if you are from maths background, na, cracking these quants parts, or you can give the CAT exam also. Mm-hmm. CAT exam is a better option if you're like interested in coming to the finance division, finance part, or marketing, or some of the parts which is not, I think, related to the gate domain. What you will give in the gate. I will talk to a few colleges like Gate also enters into this domain also. I'll talk into this later part of this video. But if you say, I think Gate and CAT for the agriculture engineering, it's a best part. Okay. Apart from that, like as an agri engineering student, we have to like basically according to your good options are GATE and CAT. Yeah, After right. that, like AFO and all other government sector or other. Correct. Haven't like what were your thoughts like any other skills while pursuing the degree or any other things which like I have seen you like as a very like ideal person like Okay. wake up at a 6 o'clock, sleeping by 10 p.m. Yeah, yeah. So you are very very good at the routine part. Is that also that helps you, and how that in that See, college phase you have maintained yourself so well? yeah, yeah. So major the things because as you have mentioned that was correct because you need you are working hard. That's fine. You are studying also 6 and that's fine. But if your mind is not healthy enough, you have to keep your mind and body both the parts healthy because this gate is not like a 1 day push. It needs a consistent or whether you have CAT exam, it's needs a consistent like 6 7 months you have to prepare. So to have that energy every day, na, you have to maintain some guidelines. You have to maintain some discipline in your daily routine. So in order to have that energy every day, so that you can be consistent and prepare and put forth to life. ये तो चाहिए। हम्म। तो एज अ लाइक AIR 6 ऑल इंडिया रैंक 6, मैं ये पूछना Okay, चाह रहा हूँ जर्नी कैसे स्टार्ट की, हाउ व्हाट्स sure, योर sure, प्रिपरेशन sure. फेज, कब स्टार्ट की, कौन कौन सी Correct. बुक्स का रिकमेंडेशन हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, और कोई कोचिंग आपने ली तो वो कौन सी थी, Sure, एंड लाइक बेसिक फ्रेमवर्क आप गाइडेंस दे सके तो। sure, 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 sure. So basically, it was the first time in our time, like third year student can give the gate exam. So, okay. ओके, So in third year, first time we can give the gate exam. Basically in the first नाउ year. आल्सो इट इज द सेम Ninth थिंग also, या also अभी? we're the first ओके batch. Now it ओके has started. So basically in the ओके, second year, second sem, we, Vijay, Arpit, these all the friends that were ऑल द like फ्रेंड्स। engineering branch. We were like around 8 9 students were there. So we all thought like only 4 5 students were interested in the gate exam. So we all thought like if we have to do something, we have to make a core group. Like group is something like I'm not talking about making the 10 9 10 people like they are just talking to each other. Make a small circle that will help each other to push, so that if someone is falling apart, there should be some people to pull back and again go back. So it was my friend circle was very good. If you talk about, so you have to make a good circle because alone fighting is good, but sometimes you need someone to push you because he knows, because if you're joining some institute will be only for 2 or 3 hours, but your friends will be staying with you 24 hours. So they can only push you from like and make a friend circles like those are the who is a positive thinker, like they only needs they are because negatives are everywhere in the world.
You can Mm. find small positive also, that you have to find out from your friends only, that they are the only that will be living all your life. So make Just friends. take the all the good parts from everyone. Yeah, correct. Mm. So this was the, so we started in second year, second sem. So we were like our engineering mathematics. If you talk about, we have M1, M2, M3. First year, first year in we have two sems of mathematics, and second year first sem M1, M2, M3. So our M3 is got completed. This M1, M2, M3 is the only syllabus of GATE for mathematics, engineering Okay. mathematics, Okay. and comprises of 27 marks. Okay. So these 27 marks can be easily be collected by any students, because you have already know, because if you talk about the aptitude part is quite easy, but you have to be quite creative and logical thinking. It doesn't like it's kind of free giving marks, but it's kind of negative also it can, because it's kind of like it's look Okay. like easy, but you have to Mm. think a lot to solve that Mm. question. So Okay. we started with the engineering mathematics part and the aptitude part. So we were pretty much covered in the engineering mathematics part and the aptitude part. So in Mm. second year, second sem, your courses will start for the what's the agriculture, what the gate courses, gate exam requires. Like we talk about farm machinery, or irrigation, drainage. These all hydrology. These all subjects starts. So we were like, let's give the gate exam. Whatever happens, me and Vijay gave the gate exam. So whatever happens, let's see. So we pretty much fall apart in third year first sem. I got Mm. around 17 marks. So it's like not a Mm. qualified marks also, but it's fine. Okay. I have seen the, because at that time I came to know that what I am currently situation now. You have How I can, experienced the paper. yeah, just I'm chilling. You can see what your body is, what your mind is happening in 3 hours. That's more Mm. important. Studying is fine. How you can handle the Mm. pressure. You were Mm. pretty much comfortable. Like it's kind of practice match for India. Mm. How they play practice match and they Is perform it well. did you thought like is that thing helped you like Yeah, correct, correct, in the correct. main examination? Yeah, yeah, definitely. Because that experience can never be lost. Your result Mm. is whatever result is there, but your experience can no one can take experience from you. That was the main learning from it, like how I can handle the that brain, na? Because I had the setback in JEE mains J advance. If you talk about J advance, like I was pretty much tense because I couldn't handle the pressure. That came again Correct. back in third year and first step, Mm. because you are in completely bubble, you are living in bubble engineering college, you are competing with Mm. 70, 80 guys, you are just like you Mm. are scoring 8 CGP 8.5, so it's fine, but you're not Mm. living with the competition what India is showing up to All you. over India it is. Yeah. Mm. So it's kind of like, so better, it's good for students who want to give the gate exam. Cat people also give, they also Mm. like 1 year before they try to whatever the scores they are, then they again in the final attempt they generally scores better, because this is all the experience now, it's kind of build up for your good preparation. So in the So you third, are uh, so yeah, in please continue. third year first time, we got our marks. Like we are knowing that we only prepared for engineering mathematics and study. We can't expect much. On if you see for the 27 marks, we performed pretty well only. 17 marks we performed out of 27. It's like good only, because you are not pretty much that much prepared also, and covering that 17 around 70% marks, it's fine out of 27. So we are good. So our institute, so one of the good part of our college was na University of Agriculture Science. We were the first batch who got the free coaching of GATE. So Okay. I can mention that coaching name also, because that coaching is really working hard for the students. Like it's trans easy. This is RK Adarsh. Yeah. So it's kind of good for us. We got the name of we got the help from the institute. Like the trans is help now. First of all, things like it has the good course structure. Whatever the agriculture engineering phase now, there's no course structure. Like you will study these things in this sem, this structure in this sem. So there's no pathway. You need guidance, because if you talk about J Advanced or other branches, take example of civil engineering, GATE, or mechanical or computer science, they have the pretty much good course structure. They have the pretty much guidance. But in our there's very less guidance, because you don't know what to study. So these institutes, this Transisi or many other institutes are there. What they help you, they generally cover your courses before the GATE exam, and they know what are the questions can be asked. So because these questions are not prepared by the simple person, these questions are like there's only 8 old IITs and one ISC. So these institutes only prepare the gate paper. So these professors know what to ask from the questions. So they will not ask you a very hard question, but they will the basic questions. Na? These are institute, this transit will help you a lot, because they will also prepare for your test series, which is the one of the most important part. Like preparing is good, like studying is very good, but you don't know how much you're scoring, how you are handling the pressure. These all 10 to 12 tests if you give in your life in this for the gate exam, it will be pretty much like it's kind of scenario creation, simulation type. It's kind of simulation. You are giving the gate exam, you are solving papers, you are, and the one things I always did in my this preparation, I Sarup has also seen me, like generally make the two types of notes, one long notes and one short notes. Long notes is Yeah. something.
Long notes is something like I write everything, like whether it's concept, whether definition, whatever things I can write. In short notes, only the things that I forget. The things like if you talk about different if I generally forgot the topics of the Erical changing, it's quite a lot. But if we talk about differential calculus, so there are the few things. If you talk about Stokes law, sometimes these laws you can forget, so you can write it. The things you can forget, you can write in short, so that this short notes should be that, so you can prepare in 1 or 2 hours. You just need to revise that notes. That is short notes, not like just you are revising entire day and still short notes is not completed. So Mhm. it is Yeah, not, yeah, yeah. this will not be the short notes. Short notes Mhm. simply that you have to prepare your mind also that these things need to be remembered. Or I am saying remember because I a little I don't Mhm. like, but few things need to be remembered. It's not like Mhm. everything not be served like a teaspoon. Something needs to Mhm. be remembered because Yeah, see by your problem. own. Yeah, some Mhm. problem types of problems, like if you see about, if you talk about computer science, data sciences, or any software developer na, there's a lead code. Lead code is a software where people can solve the questions. Okay, उसमें different patterns come, so people generally solve the patterns only because these patterns help to solve the different types of questions. So this kind of, so I'm telling that remember the pattern of problems. So it will be easy if different patterns come. You can easily go through the problems and solve it. So I'm saying that have two notes, one short notes and one long notes. And after every test series, there is one analysis like how you perform, what are the questions Mhm. you made wrong, and the questions you made wrong, na, write on short notes because these are the mistakes that you are again have to There be are chances corrected. that we can repeat those mistakes again. Yeah. So if you revise your short notes, na, you can see your mistakes. Mhm. So that was the case. If you talk about books, I'll try to mention description also in video also. That will be better Mhm. because Mhm. like if you talk about hydrology, there are few books I referred. I will ask the Sharuk to You had will and share. We yeah, will share the yeah, link of those books in our comment correct, section, yeah, or we'll pin that comment section. yeah, that will be So better. So thank you coming for back to that. yeah, Please, please continue. Please continue. yeah. So this was the scene. We were pretty much I think we were not say lucky, but the COVID came in that year. Mhm. We were that bad that 1 year we were in the rooms. So we were in the Bangalore. The COVID came. We have to go back to our homes. We have to stay there 1 year. So 1 year was like we were having the online class. So there was I think I got a time to study and focus back on the gate pretty much. So what I did now, I was like in morning time, I was revising the notes. In daytime, I was solving the problems. Whether you talk about farm power machinery, whether you talk about food processing engineering, these are the major subjects. Like these are called the, if you talk about farm and food, these are the heart of agriculture. Everybody knows. If farm and food is not there, agriculture is not existing itself. So these were the subjects that I primarily focused, and the soil water condition. These are the easiest parts. You can easily cover in 1 or 2 months. But farm power machine and food processing, they comprise around 70% of your marks of your gate technical part. If you're talking about 70% of marks, so these were the pretty much I covered. So it was kind of smooth sailing. But when I was giving the if you're looking like it's smooth sailing, it's not smooth sailing. But when I was giving the mock test, I was not performing well because now you have started. Now you have to revise the entire things. Entire preparation has to be concise into one page. You have to prepare your mind that now you're giving the mock test. Now you have to circulate all the things, come back to the problems you're solving now. Because when you're giving the part test now, it's like your mind was like this is the differential calculus problems are coming. So your mind is like differential calculus formulas will come. But now you're giving the entire test. Now you have to concise all the things in your mind. See, it's kind of easy also, but if you go for it's multiple times, if you're trying first time, there will be failing apart. This will be time when you'll see that the you are failing apart, but you have to push yourself. There was a time when I was giving Correct. them, when there was few of the times like I was seeing that my performance was falling down. But when I saw if many of my friends, so I'm telling them have a friend circle like many of Vijay or Arpit, many of Villa, they help me like it's fine. Someone is performing well, so have that help They from them. boost. They boost you like Correct. when you were at your low. Just give me 5 minutes when someone has came. Hmm. 5 minutes. Like as I was telling. Now, Saket, please continue with what you were saying. Okay, sure. So here was that like you're failing the mock test. There will pretty time because mock test is like a simulation. So you'll be feeling the same level of preparation, same level of toughness in the exam. तो दिक्कतें तो होगी, बिल्कुल होगी. तुम गिरोगे, पर जो गिरते वही उठते हैं, सीधी बात है. जो Correct. सही गिरेंगे नहीं बात वो है. उठेंगे नहीं. If you don't take हम्म. the risk in life, you will not enjoy the what is the life is. So हम्म. वहां से तुम जो सीखोगे ना, जो तुमको वो गेट में ना जी जान लगाने में मदद भी करेगी. क्योंकि तुम जब गिरोगे, अगर तुम हमेशा अच्छा करोगे तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा. वो गेट जैसे एग्जाम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है.
पर अगर तुम गिर रहे हो ना, तुमको पता है कि हाँ यहाँ में दिक्कतें हो रही है. If you example, for example, if you take about pharmacy, it's kind of toughest part. I am mentioning farm and food plenty of the times because if you are studying the GATE exam, you will know what it carries, how much dedication, how much hard work. वो तुम्हारा 70% of the GATE preparation खा लेगा. If करेक्ट you है. if you're not focusing on that point, you are like I can just qualify exam. सिर्फ क्वालिफाई चक्कर में रहोगे तो कॉलेज भी वैसे क्वालिफाई वाले मिलेंगे. हम्म. तो तुम्हें करना तो पड़ेगा जी जान लगा के. चीजें इतनी आसान हम्म. है भी नहीं. जैसे मैंने स्टार्ट ही किया था कि आई थॉट गेट हैज लॉट लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, गेट इज प्रेटी हम्म. इजी फॉर दिस काइंड ऑफ ब्रांच. इजी. बट मेहनत तो उतना ही करना पड़ेगा बिकॉज यू नीड टू करेक्ट है. हार्ड वर्क सेम लेवल बिकॉज you From prepared a that proper. limited seats and from like all the Correct. limited brilliant minds only. Correct. हम्म. जैसे हमने स्टार्टिंग किया था लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस है तो सीट्स भी लेस होंगे. बेसिकली प्रोपोर्शन होता है करेक्ट है. उसके साथ. तो वही प्रोपोर्शन रहता है. तो वही सेम प्रोपोर्शन होता है. इफ यू टॉक अबाउट ए4 या कुछ भी एग्जाम लो, जितना ज्यादा, हम्म. जितना कम बच्चे उतना कम सीट्स. अगर सिर्फ 10,000 करेक्ट बच्चे है. बच्चे हैं तो ए4 में 1 सीट्स होगा. बेसिकली 1 out of 10,000 रेशियो होगा. वही रहता है. करेक्ट. वही होता है, वही इंटरव्यू में बताते. बेसिकली आसान तो कुछ भी नहीं लाइफ में. तो वही हम्म. बता रहा था मैं कि अगर तुम मॉक टेस्ट में फेल कर रहे हो ना, तो तुम्हें पता है कि ये चीजें मिस्टेक्स तुम कवर करो, तो बस पेटी मच टाइम है. तुम भले गिर रहे हो पर तुम्हें अगले दिन उठ के फिर से वो स्टडी करना है, फिर से पढ़ाई करना है. फिर चीजें तुमको सेटबैक वो तुमको मिलेगा, पर ये मिलते मिलते ना तुम स्ट्रांग हो जाओगे. विराट कोहली का इफ यू स्टार्ट लुक अबाउट विराट कोहली स्टार्टिंग 2008 ही स्टार्टेड. हम्म. देयर वाज लॉट ऑफ फेलियर्स. इफ यू टॉक अबाउट इंग्लैंड टू, बहुत से क्रिकेट फैंस देख रहे होंगे, तो वो हाँ. 2012 का बहुत सा बात होता है 2010 इंग्लैंड से. वहां पे उसका एवरेज हम्म. बहुत ज्यादा गिर गया था, पर उसने वर्क किया हम्म. हार्ड. फिर 2014 ऑस्ट्रेलिया टूर में भाई काफी मतलब काफी परफॉर्मेंस, ही बिकम द विराट कोहली द पीपल नोज नाउ. हम्म. तो दिस वाज द टाइम बिकॉज सेटबैक्स तो कोई भी सुपर हीरो या कोई भी तुम्हारे, इफ टॉक अबाउट फैमिली आल्सो ना, योर फादर आल्सो, ही आल्सो फेस सेटबैक, बट ही विल नॉट शो यू सेटबैक बिकॉज ही नोज, ही हैव सीन इट्स अ दैट. पार्ट. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. वही बोल रहा हूँ मैं. तो ये सब मॉक टेस्ट तुम देते रहो, लगे रहो, उसके पीछे पड़े रहो कि तुम्हें, अगर तुमने एक बार सोच लिया गेट कैट एनी एग्जाम, तो पीछे नहीं हटना है. क्योंकि तुमने हम्म. ये सोच लिया, अगर तुम अपने डिसीजन में अगर तुम धीरे ढाले रहोगे तो तुम अपने लाइफ के डिसीजन कैसे लोगे. ये तो तुम्हारा एक करेक्ट है. स्मॉल पार्ट ऑफ डिसीजन है. तो ऐसे हम्म. लगे रहो. तो हमने क्या कहते हैं फिर नवंबर में फुल मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया था. ठीक है. हम्म. फुल मॉक टेस्ट दिया, अच्छा हुआ खराब हुआ चलते रहा, लाइफ का पार्ट होते रहा. हमने एनालिसिस मोर इम्पोर्टेंट था गिविंग द टेस्ट, कि तुम्हें अपनी मिस्टेक्स पता चला, सिली मिस्टेक्स पता चला. गेट में क्या होता है ना, राउंड अप टू 2 डेसिमल्स. अब तूने निकाल लिया 100.293. ठीक है, यहाँ तो तुम्हारा 29 आ जाएगा, पर जहां पे 246 रहेगा तुम्हारा 2425 हो जाएगा, क्योंकि तुम राउंड अप कर रहे हो हम्म. नेक्स्ट 2 डेसिमल. तो ये अगर तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा तो मार्क्स को आंसर गलत हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रेटी मच बहुत लेस मार्जिन होता है. तो ये सब इतना इतना तक ध्यान रखना पड़ता है. अप टू 2 डेसिमल बिल्कुल यू हैव टू बिल्कुल. लाइक तो लुक. इसलिए मैं इसलिए इन सब बातों फोकस करो कि कोई भी गेट एस्पिरेंट्स है, अगर वो कॉन्फिडेंट है ठीक है, इट्स फाइन, यू आर परफॉर्मिंग वेल, यू आर फाइन, यू आर स्टडिंग वेल. बट इफ यू आर नॉट रीडिंग द क्वेश्चंस वेल ना while attempting, because sometimes ना उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं which is not to be selected, ऐसे पूछते हैं, पर तुम खुद उसमें हम्म. पहला ऑप्शन देके सेलेक्ट करके आगे बढ़ गए. करेक्ट है. तो वो सिचुएशन से बचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना एक एक मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक एक मार्क्स में 10-10 रैंक पीछे हो जाते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे एक मार्क्स के 0.33 डिडक्ट होते हैं. 0.33 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, और उसके 1 मार्क्स मिलते हैं. तो भाई बहुत रिस्की है. क्योंकि हम्म. अगर मैं आगे बात करूंगा, बताऊंगा क्या क्या चीजें हुई थी. तो अब जैसे हमने गेट एग्जाम दिया फेब में 2024, फेब 2022 में. ठीक है. तो ये आपका फोर्थ ईयर फर्स्ट सेम ने तुमने एग्जाम दिया. फोर्थ ईयर फर्स्ट टाइम वी गेव द गेट एग्जाम. सो लाइक वी वर कॉन्फिडेंट, लाइक एक और जैसे तो मैंने लोग बताया. ऐसा ये माइंडसेट रहता है लोगों का जनरली कि भाई डिग्री के बाद गेट देते हैं, बट ऐसा है कि ऐसा लाइक विद इन डिग्री भी आप दे सकते हो. व्हाइल परस्यूइंग डिग्री करेक्ट. आप फाइनल ईयर करेक्ट. में दे सकते हो. फाइन. वो थर्ड ईयर अच्छा से डिसीजन. स्टार्ट कर सकते हो. हम्म. वो अच्छा डिसीजन इसलिए भी है कि देखो तुमने थर्ड ईयर फर्स्ट सेम गेट एग्जाम दे दिया है. ठीक है. हम्म. जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते जनरली वही लोग क्या आते हैं फोर्थ ईयर के बाद एग्जाम देने, वो डर लगता है एग्जाम देने का. वो फियर ना, हम्म. वो फियर हटाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ. थर्ड ईयर फर्स्ट सेम तुम गेट एग्जाम दो, जाके एक्सपीरियंस करो उस चीज को. वो होता है ना, आप जैसे आईफोन का तो एक्सपीरियंस सेंटर होता है, वहां बिकता नहीं है फोन, पर वहाँ एक्सपीरियंस होता है लोगों का. वो मतलब एक्सपीरियंस होगा. एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ मैं. ये एक्सपीरियंस को हेल्प करेगा आगे हम्म. गेट प्रिपरेशन में, आगे तुम जो सेटबैक्स मिलेंगे वो चीज हेल्प करेंगे. हम्म. तो जैसे हमने प्रिपेयर किया काफी सही रहा था, मतलब ऊपर नीचे तो हुआ, पर फाइनली हम जनवरी में, जैसे कोविड टाइम चला था, हमें ये भी नहीं पता था एग्जाम होगा कि नहीं होगा फरवरी में. तो हम ये हम्म. सिचुएशन में थे. ओमनिकॉन चला था जैसे याद होगा. तो हम्म. आईआईटी केजीपी कंडक्ट करे थे एग्जाम. सो हमें ये भी नहीं पता एग्जाम होगा, तो पर हमें पता था कि एग्जाम तो होना ही है.
करना तो पड़ेगा, भले तुम कैसे रहो, मतलब पूरा लॉकडाउन जैसा सिचुएशन ओमनिकॉन टाइम में था, तुम पूरे रूम में बंद हो, पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज में हो, पढ़ाई कर रहे हो, पर तुम्हें पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं होगा। ये थोड़ा चीजें सेटबैक करते, पर इफ यू वांट टू समथिंग डू इन अ गुड लाइफ ना, यू नीड टू बी प्रेटी कंसिस्टेंट इन योर डिसीजन व्हाट यू हैव टेकन इन लाइफ। सो अगर ये नहीं करोगे ना, अपने डिसीजंस को ही तुम हिलाते डुलाते रहोगे, चीजें सेम नहीं रहती है, क्योंकि ये तो तुम्हारे हाथ में है, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो रिजल्ट से पहले जितना कुछ कर सकते हो ना, उतना तुमको करना ही पड़ेगा। तो ये सब हमने अच्छे से किया। हमने फिर फैब में एग्जाम दिया, कैसा रहा फिर वो? एग्जाम दिया, एग्जाम में जाता हूँ। तो मैं जैसे एंटर किया ना, थोड़ा देर तो मेरे भी कहते पैर पाँव ढीले तो हो गए थे। तो फर्स्ट 1 आवर ना, भले मैंने कितना ही इधर बोल दिया कि एक्सपीरियंस वो सब ठीक है, पर जब तुम्हें पता चलता है ना ये डिसीजन तुम्हारी लाइफ का, रियलिटी। हाँ। ये डिसीजन तुम्हारी लाइफ चेंज करने वाला है, चेंज करने वाला है। तो तुम्हें लग तो जाते हैं। तुम्हें दिक्कत तो बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, मतलब प्रेटी तो मच नर्वस हो गए। मैंने एक काम अपने ड्यूरेशन में ये किया था ना, मैं अपने घर वालों या किसी को नहीं बताया था, सिर्फ मेरे फ्रेंड्स को बताया था जो मेरे से क्लोज थे, कि मैं गेट प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कहीं कि ओके। ज्यादा तुम एक लोगों पीर। को हाँ, ज्यादा तुम लोगों को बताओगे ना, उससे अलग प्रेशर आता है। वो मेरे प्रेशर आता है। चाहिए एडवांस हो चुका था, रिलेटिव्स को पता था, वो कॉल परफॉर्मेंस करते थे। प्रेशर रहता है कि भाई करेक्ट, हाँ, मेरे को बताना पड़ेगा। करेक्ट। तो तुम्हें ऐसे ही लाइफ में कम प्रेशर नहीं है, तो तुम क्यों एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड करोगे जी, और शो क्यों ऑफ करने बढ़ाना है? चक्कर, शो ऑफ करने चक्कर में कि मैं ये प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो रिलेटिव्स अलग परेशान करते हैं। तो चीजें अपनी कंसिस्टेंट रखो। मैं सिर्फ, मेरी जो बात हुई थी गेट की, मुझे याद है, हमारे फेब 6 को एग्जाम थी, तो मैं फेब को 5 को फोन किया, जस्ट फॉर ब्लेसिंग्स ऑफ माई पेरेंट्स, लाइक कल मेरा गेट एग्जाम है। वो भी शौक थे कि कब प्रिपेयर किया, कब हुआ, ये सब चीज। क्योंकि उनको पता था गेट एग्जाम क्या होता है, दे वर नोइंग, माय फादर वाज नोइंग दे व्हाट गिव, पर उनको मैंने नहीं, क्लियरली नहीं पता कि मैं गेट प्रिपेयर कर रहा हूँ। वो भी प्रिटी मच शौक थे कि कब क्या प्रिपेयर, ऐसे दे रहे हो, क्या कर रहे हो। मैं बोला आप टेंशन मत लो, मैंने कर लिया, इतना मेरे को करना सब कर लिया, आपसे ब्लेसिंग तो आशीर्वाद दो मेरे को। मैंने बहुत लिमिट रखा था चीजें, सब एक्सपीरियंस है कि मैं जे एडवांस से प्रेशर देख चुका था। मैंने बहुत हवा उड़ाया था जे एडवांस टाइम में, जे एडवांस दे रहा हूँ, जे एडवांस दे रहा हूँ, जिंग टाइम में है, उसमें बहुत चाइल्डहुड टाइम्स होता है, तुम्हें पता नहीं होता है चीजें तुम क्या कर रहे हो। पर ये जो एज ग्रुप होता है ना बैचलर्स के टाइम में, तुम्हें चीजें दिखता है कि हाँ ये डिसीजन लोगे तो ये चीजें अच्छा होगा, ये चीजें खराब होगी। तो मैंने प्रेटी मच अपने फ्रेंड सर्कल कम रखा था स्टडिंग टाइम में, क्योंकि अगर चीजें तुम बढ़ाओगे तो फिर तुम्हारी दिक्कतें बढ़ती है। तो वही है, मैंने ब्लेसिंग्स लिया, काफी अच्छा रहा। फिर मैं जब, अब बता रहा हूँ, मैं एग्जाम सेंटर बैठा जैसे, ठीक है, जो फर्स्ट हाफ एन आवर था ना, ब्लैकआउट हो गया मैं, कंप्लीटली ब्लैकआउट। पर एक चीज अच्छा था मेरे लिए कि मैंने इतना मेहनत किया था कि मुझे पता था कि ये सेटबैक सिर्फ हाफ एन आवर तक है। आई कैन सॉल्व वन, अगर मैंने एक प्रॉब्लम में किया ना, मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। इतना बिलीव तुमको रखना कॉन्फिडेंस पड़ेगा, था। इतना बिलीफ रखना एंड पड़ेगा। कॉन्फिडेंस। इतना अगर इतना नहीं रखोगे, चीजें और खराब होगी। तो हाफ एन आवर में फिर रिलैक्स हुआ, क्योंकि मेरा मैं स्टार्ट कैसे करता, पहले इंजी मैथमेटिक्स करता था, फिर एप्टीट्यूड, फिर टेक्निकल। और मेरे को आगे इंजी मैथमेटिक्स में एक ऐसा प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व नहीं किया था कभी, और अचानक वो दिख जा, और फिर मैं टेक्निकल में गया, वहां भी एक हाइड्रोलॉजी प्रॉब्लम जो मैं स्किप करता था हमेशा, मॉक में भी इसका कि तुम कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं सब नहीं कवर कर सकते हो तुम, बेसिकली सारे तुम कवर नहीं कर सकते हो, कुछ कुछ छोड़ देते हो कि ठीक है आगे देख लेंगे। तो वो दो प्रॉब्लम्स आ गए, मैं हो गया ब्लैकआउट पूरा। मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ नहीं रहा है जो क्वेश्चन मेरे को आते हैं, है कि मैं फर्स्ट जो क्वेश्चन मेरे माइंड शून्य हो गया कि मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन अब सॉल्व करना है। तो मैं क्या किया, बेसिकली एक क्वेश्चन सोचा कि अब करना तो पड़ेगा ही, अब यहाँ बैठा हूँ 3 घंटे, तो करना तो पड़ेगा सॉल्व। कर ही लेता हूँ। कहीं कि अब तो बता भी दिया हूँ घर में कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ अब, कि वो तो ठीक है, पर वो तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं था कि, पर मेरे लिए अपने लिए कुछ कर रहे थे तुम, ये फर्स्ट टाइम तुम ऐसे डिसीजन लियो जो अपने लिए लियो तुम, जो किसी से पूछे नहीं, तुम ऐसे डिसीजन लेके आगे बढ़े हो। तो मैं मेहनत किया है, 2 साल में लग के मेहनत किया। तो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, जो एक क्वेश्चन सॉल्व किया ना, there was no coming back. So when I solved my one question ना, that was completely gave me confidence. It completely boosted, और वो अच्छा क्वेश्चन था, वो जब सॉल्व किया मैंने, तो मेरे से हर जो क्वेश्चन जो दो देखा था पहले, वो भी सॉल्व हो गया। वो भी सॉल्व हो रहा है, एक हाँ, बूस्टअप मिल जाता है। करेक्ट, बूस्टअप मिल गया। मैंने ऑलमोस्ट आई स्कोर अराउंड 70 मार्क्स, 70 आउट ऑफ 100। तो उसमें क्या था ना, मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन मेरा निगेटिव हुआ था, पॉइंट थी कट हुआ था। मैंने एक चीज जाना था, जे एडवांस में बहुत तुक्का मारता था, काइंड ऑफ फ्लफी आंसर में बहुत मारा था जे एडवांस, वो भी एक। तो मेरे केमिस्ट्री में 0 थे, मतलब प्लस माइनस अच्छा। होकर 0 हो गए थे। तो मैं वो चीज तो सीख गया था कि ये काम तो कभी एकदम करना, डिटरमाइंड है। कि ये काम तो नहीं करना है, कि लगता है तुम्हें ये आंसर सही है, पर वो आंसर सही नहीं होता है। वो काम तो करना ही बिल्कुल लाइफ में मत करो, भले कोई भी डिसीजन ले रहे हो, वो तुक्का वाला काम तो मत, जो डिसीजन ले रहे हो उसको तुम मानो कि हाँ ये डिसीजन मेरा है, दिस इज माई डिसीजन,
उस पे कॉन्फिडेंस है वो। अकाउंटेबिलिटी तुमको लेना पड़ेगा डिसीजन। तो अकाउंटेबल जब होगा तो हम्म, तुम ये डिसीजन नहीं लोगे, तुक्का मारने वाला। तो एक हम्म, चीज के कारण मेरे सिर्फ एक ही क्वेश्चन निगेटिव हुए थे, पॉइंट थी, तो मैं प्रेटी मच 70 मार्क्स के आसपास स्कोर किया। अब आती है कॉलेज की बात। 70, जैसे जैसे मैं एग्जाम से बाहर निकला ना, मैं इतना हम्म, कॉन्फिडेंट था, मैंने घर बोल दिया कि मेरा एग्जाम अच्छा गया है। दे विल से, हम्म। बिकॉज जब तुम एग्जाम देते हो ना, ऐसे आपको। एग्जाम, जब तुम ऐसे एग्जाम देते हो तुम्हें अंदर से फील आ जाता है कि एग्जाम अच्छा गया खराब गया। तुम भले हम्म, तुम आंसर की से जोड़ो कि नहीं जोड़ो, तुम्हें अंदर से फील आता है कि तुमने कुछ तो कर दिया है अच्छा। हम्म, तो ये मैंने बता दिया। अब एग्जाम का रिजल्ट का वेट हो रहा है, तो हम घूमने चले गए। तो अब देखो, अब तो थोड़ा कॉलेज लाइफ एंजॉय करो। ऐसा नहीं कि अब मैं पूरा पढ़ाई पढ़ाई माहौल बना दिया हूँ। फोर्थ ईयर फर्स्ट ईयर हम्म, के बाद तुम प्रेटी मच फ्री हो जाते हो गेट एग्जाम। अगर तुमने एक ही एग्जाम लिया ना, तो फोर्थ ईयर हम्म, फर्स्ट ईयर तुम थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, ताकि तुमने जितना तुम अपने को रिवार्ड भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा ही हम्म, पीछे पड़ते रहो पढ़ाई पढ़ाई। तो अपने बॉडी को तुम रिवार्ड नहीं दोगे ना, तो माइंड जो है ना बहुत चंचल है, उसको अगर नहीं संभालोगे ना सही तरीके से, वो भागेगा उस चीज से। तुम क्या कि तुम फिर पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तुम्हें नहीं पता रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, पर अपने माइंड को रिवार्ड आपका तुम्हें नहीं करना। तो रिजल्ट वो, डे पे कैसा रहा फिर? रिजल्ट डे, हाउ हाउ इट वेंट, हाउ हाँ तो वो तो AIR AIR 6, व्हाट वर योर थॉट्स? कौन से कॉलेज जाना है, क्या था, सब क्लियर था so उस टाइम या I, कैसा? I remember the day. It was 17 March. So हम्म, it used to come on 18 March, but 17 March को दे देते हैं। वो जनरली एक दिन पहले। एक दिन पहले दे देते हैं, ताकि ज्यादा लोग वेबसाइट को क्रैश ना करते हैं। और रात के 11 बजे था, मैं सोया हुआ था मस्त अपने बेड में। हम्म, तो विजय शायद बाहर था, अर्पित आयरन में, वो उठाया मेरे को, बोला हम्म, रिजल्ट आ गया। बोला कौन सा रिजल्ट? तो हम्म, 11 बजे रात को तो मैं रिजल्ट देखा। जब मैं रिजल्ट देखा हम्म, ना, मैं खुद चौंक गया था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मेरे को पता था मार्क्स कितना 70 आ रहा है, और कॉलेज में पता था सारे लोगों को। अपने मेरे प्रोफेसर, एक द्रोणाचार्य मानवीय प्रोफेसर है, उन्होंने बहुत हेल्प किया था मेरा। उन्हीं की गाइडेंस थोड़ा वो मेरे को थोड़ा ट्रेनिंग जो होता है ना, फाइनल ट्रेनिंग जो होता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उनमें थोड़ा सा हेल्प किया था उन्होंने। उनका भी मैं हमेशा कहते हैं हेल्प मैं मानता हूँ कि उनका भी बहुत सारा मतलब था उनका हेल्प, जिस कारण मैं एक रिजल्ट अचीव किया हूँ। तो मैं जब देखा रिजल्ट, मैं खुद चौंक गया कि ये तो कुछ अलग ही हो गया है। बीइंग द 6th रैंक, तो वो तो मेरे को भी पता नहीं था कि आएगा रैंक, टॉप 10 आएगा, पर 6 रैंक ही आ जाए ये नहीं पता था। तो मैं तो वो जो 30 सेकंड होता है ना लाइफ का, वो तुम पूरे लाइफ को सर्कल देख लोगे तुम्हारा। हम्म, तुम 10th से बाहर गए, तुम पूरे क्लास हम्म, 10 से तुम हमेशा फैमिली से दूर हो, तुम इतना हार्डवर्क करके यहाँ पहुंचे हो, वो तुम्हें एक जो आंसू का ड्रॉप होता है ना, उसमें सब कुछ दिख जाएगा तुमको। बिल्कुल तुम हम्म। कहते हैं वो मतलब तुम कांट सारा एक्सप्रेस मेहनत। एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तुम। तो 11 बजे मैं देखा, तो रिजल्ट देखा, मैं 30 सेकंड बैठा रहा बाहर, मतलब अपने एक आउटसाइड था, कोर्टयार्ड टाइप का था, हॉस्टल बाहर होता है, हमारे हॉस्टल बाहर था। तो वहां बैठा रहा आधा 30 सेकंड, सोचा कि क्या हो गया, ये कैसे बताऊं सबको। ये क्या कर दिया मैंने। तो यही था, मैं देख रहा था, तो मतलब फिर मैं फैमिली कॉल किया। जनरली मैं रात को कॉल नहीं करता। वो भी बोले क्या हो गया, मतलब दे वर सो गए, कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या इतना रात को कॉल कर रहा है। सो लाइक दे वर ऑल्सो हैप्पी दैट, बिकॉज दे ऑल्सो लिव, बिकॉज जो पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चों में अपने सपने देखते हैं। अगर तुम उनके सपने नहीं पूरे करो, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है टाइरल से। Like if you're not living the dreams of a family, na, of your parents, of your father, of your mother, your life is completely waste. So if you are living the dreams, na, I think that's the best blessing that God has given us. So you can fulfill your parents' dream. That I will say, like it's kind of a blessing for us. So जब मैंने उनको बताया, तो my father was traveling somewhere in train, so he was sleeping. So one of a friend was, he was awake, so he called me, like he was also crying. My father was crying because he has seen my life grow from योर जर्नी। yeah, हाँ। from child, because he was completely hopeful for me. Because if हम्म, you seen the JE dancing performance, my father never before preparation he used to वो हमेशा डांटते थे मेरे को बिफोर प्रिपेयर। हम्म, आप रिजल्ट के समय कभी नहीं डांटे मेरे को। वो हमेशा सपोर्ट के, ठीक है जो डिसीजन लियो तुम अच्छा है, ठीक है तुमको जो करना तुम बता दो। ही नेवर इम्पोज एनी डिसीजन। हाँ वो 50 डिसीजन उनका था, हम्म, बाकी सब मेरा डिसीजन था। मतलब ही ऑलवेज सपोर्टेड मी व्हाट एवर डिसीजन, व्हाट एवर फेलियर्स आई हैव सीन। सो ही लाइक बहुत पेरेंट्स को ये सोचना पड़ेगा कि रिजल्ट से पहले ही आप सब कुछ कर सकते हो। अगर कोई नाउ पेरेंट्स इज अ प्राउड फादर। हाँ, अगर कोई पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं, तो अगर अपने बच्चों को आप रिजल्ट से पहले जितना डांटना है, जितना सोचना है, रिजल्ट के बाद आप कुछ भी कर लोगे कुछ फायदा नहीं है, वो चेंज नहीं होने वाला है। उससे अपने चाइल्ड को डिमोटिवेट ही कर रहे हैं, उन चीजों से दूर भाग रहे हैं। तो जब ये सब हो गया, अब आते हैं, तो रिजल्ट सब अच्छा खासा रहा। प्रोफेसर सब खुश थे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट बैच थे, इसको गेट कोचिंग मिला था, ट्रांसलेट फ्री कोचिंग था, तो रिजल्ट सब अच्छे आ गए। टॉप 20 में 2 बच्चे आ गए थे कॉलेज के, मैं और विजय थे। तो काफी अच्छा पोजीशन था, मतलब सही था। मतलब है कि हम लोग ऑलमोस्ट 3 ईयर से रिजल्ट नहीं आया था हमारे कॉलेज में। एक साकिब सर का बैच था,
जो आए थे टॉप 10 में, तो उनका 5th रैंक था। वो एक उनका एक अच्छा था। उसके बाद 2-3 साल तक कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, तो कॉलेज भी क्या थे, हम लोग प्रेटी लॉस्ट हो गए थे गेट के मामले में अपने हमारे कॉलेज। तो एक तो कोचिंग मिला था, प्रेशर काफी था कॉलेज में कि आपको परफॉर्म करना है। जो मेरे प्रोफेसर द्रोणाचार्य मालवी थे, वही कंट्रोल कर रहे थे इन सब चीजों को, गेट कोचिंग। उनका भी प्रेशर था थोड़ा मोड़ा कि वो बोलते नहीं थे, बट ही इज टू से लाइक डू स्मार्ट वर्क एंड गेट सम गुड रिजल्ट। वो ये नहीं बोलते टॉप 10, बट टॉप 10 ही चाहिए ना, क्योंकि इफ यू वांट टू, बिकॉज ऐसे बच्चे कम है, एग्जाम बच्चे कम है, बट इफ यू नॉट बीइंग द टॉप 10, तो तुम्हारी वो रैंक की वैल्यू भी कम हो जाती है, दिक्कत ही हो जाती है ना। तो वो तो ठीक है, वो सब अच्छा रहा, काफी मतलब मिला इज्जत, थोड़ा मिला, रेस्पेक्ट मिल गया कॉलेज से। जिस कॉलेज में पास हो रहे हो उस कॉलेज से थोड़ा रेस्पेक्ट मिला, तो वो मतलब वो सब मेमोरीज हो जाते हैं। हमको हमको भी याद है कि लाइक ऑल योर रिजल्ट्स हमने सबने लाइक करेक्ट। सब बोर्ड्स पे पोस्टर चिपकाए थे और ये सब लाइक वी आर ऑल रियली प्राउड ऑफ यू दैट डे। क्योंकि अभी हमारा सेशन थोड़ा शॉर्ट होने वाला है, वी आर आउट ऑफ टाइम, सो बहुत सारे क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स के, एस्पिरेंट्स के, तो वी वांट टू लाइक गेट यू मोर इन द क्वेश्चंस नाउ। कि फिर कैसा रहा लिस्ट, जैसे ऑल इंडिया रैंक 6 थी, ठीक है, फिर और जैसे उसके ऑल बाद कौन कौन से कॉलेजेस चूज, कॉलेज प्रेफरेंसेस, व्हाई आईएससी? हाँ ठीक है, तो उस पे आते हैं, कॉलेज पे आते हैं। सो जैसे गेट और एन 6 आ गया ना, सो मुझे पता था, एक कॉलेज मुझे पता था जो आई एम मुंबई बन गया, उसमें तो मिल जाएगा। ठीक है, आई एम मुंबई कंफर्म था मेरा कि इस अगर अगर तुम यू आर इफ यू आर स्कोरिंग अराउंड 800 प्लस ना, यू आर प्रीटी मच कॉन्फिडेंट दैट इसमें इंटरव्यू में 35% वेटेज था, बट if you're that much good na, you are scoring top 10 na, you can easily crack that much interview because they will ask more of the basic questions regarding that only. वो तो ठीक था। एक इंस्टीट्यूट मेरे को पता था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, उसमें एक डिग्री प्रोग्राम था, मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ठीक है, तो मुझे अचानक पता था, मतलब उसका डेडलाइन था 2 या 3 दिन बाद था। मुझे किस कहाँ से पता चला आई डोंट नो, बट आई गॉट टू नो दैट ये भी एक डिग्री है और आईआईसी। बिकॉज देखो, यू हैड द ड्रीम्स, तुम ठीक है आई एम मुंबई मिल रहा है ठीक है, पर अगर तुमने चाइल्डहुड से कुछ ड्रीम देखा है ना, वो भी अचीव करना चाहते हो तुम, वो मतलब वो हार्ट में छुपा रहता। तो मुझे आईआईसी का पता था, पर आईआईसी दिक्कत क्या था ना, उसका इंटरव्यू बहुत टफ था। यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे वेटेज होता है 15% सिर्फ गेट स्कोर, मतलब 15%, जस्ट 15, और 15% हुआ यूजी, और 70% हो गया तुम्हारा इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन। ओके। यहाँ पे नीति बॉम्बे तुम्हें बताता है, तो मैं क्या सोचा कि नीति बॉम्बे मिल ही रहा है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस लेट्स गिव द इंटरव्यू। ठीक है, तो इसका इंटरव्यू डेट था 19 अप्रैल और नीति बॉम्बे का था 26 अप्रैल। सो आई हैव शेड्यूल्ड दिस काइंड ऑफ, वी हैव द ऑप्शंस टू शेड्यूल द डेट्स, कब कब इंटरव्यू होना है। दो का इंटरव्यू था, और बाकी सब तो कॉलेज मिल ही जाना था, आईआईटी बॉम्बे टू टॉक अबाउट टॉप ब्रांचेस, वो मिलना था। क्योंकि इफ यू आर कमिंग द टॉप 10 ना, यू हैव द चॉइस, यू हैव द प्रीटी मच प्लेजर, सो यू कैन गेट द। एक और एक और क्वेश्चन था, जैसे तुमने बताया कि बहुत सारे ब्रांचेज है इसमें, तो तुम बता सकते हो कि व्हाट ऑल ब्रांचेज वी आर एलिजिबल आफ्टर करेक्ट। लाइक गेटिंग गुड स्कोर्स इन So गेट? if you are getting the 800 plus na gate score, 800 plus, so if I am taking about 800 score, because 800 score means you are in top 10. Top 20s or top 30s are not good bad ranks. I'm just saying, like, if you want to get the good branches, all the IIT that gives offers agriculture engineering, they all the good branches. If you talk about IIT KGP, IIT KGP offers the highest number of branches for agriculture engineering. Where you talk about IEOR, India Engineering Operation Research, that is one of the top branch of IIT KGP. They offers food processing engineering, they offers aquaculture. These all the branches are pretty good because you will be sitting in placement with all the guys. It's not like they will be selectively placing you. You will be placing with all the guys. So pretty much, if you're just sitting in the gate exam na, if you're coming in the top 100 na, you can get the seat in the IITs. That I ओके। can say. Branches might differ. माइट डिफर बट यू विल गेट अ सीट इन You will योर get a seat ड्रीम, if you, लाइक हाँ, जो हम यूजी में नहीं कर सके, तो यू कैन हैव अ right, ड्रीम correct. दैट वी कैन फुलफिल वो इन और पीजी। तुम्हें बताया था स्कॉलरशिप मिलेंगी 12,400, स्कॉलरशिप तो मिलेगा, वो तो बेनिफिट है ही। वो तो तो प्लस वो तो पॉइंट है ही। वो तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता है कि तुम गेट पे बैठ के, अगर तुम अगर टॉप 50 लाए तो तुम्हारे लिए कंफर्म है कि कोई अच्छा ब्रांच कंफर्म मिल जाएगा। फूड प्रोसेसिंग तो मिल ही जाएगा, प्रेटी मच तुम्हें मिल जाएगा आराम से, क्योंकि वहां पे फूड प्रोसेसिंग के लिए हम ही सिर्फ बैठते हैं, मतलब फूड प्रोसेसिंग हम एलिजिबल है, तो हमारे लिए आईटी केजीपी ने रखा है। तो 20-25 सीट्स रहते हैं, तो आराम से तुम्हें मिलना तय है। अब बात करते हैं इन सब, जैसे आईआईटी बॉम्बे ऑफर करती है तुम्हारे 4-5 ब्रांच, जैसे वहां भी आईयूआर है, इंडियन इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, एक जीएनआर है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स नेचुरल रिसोर्सेज, वो भी टॉप ब्रांच है। मतलब वहां से अगर तुमको फॉरेन जाना है ना, तो वो बेस्ट है। मतलब जापानीज प्लेसमेंट कंपनीज आती है वहां पे और तुम्हें जापान ले जाती है। अच्छा। तोशिबा हो गया, ओके। तोशिबा, दीज आर द बिग कंपनीज। वहां पे तुम्हारा और भी 2-3 ब्रांच है,
एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, बाकी बहुत सारे सितारा है, एक फ्रेंड था हमारा राहुल इमने, वो सितारा में था। तो बहुत सारे ब्रांच है कि प्रीटी मच तुमको मिल जाएगा अगर तुम गेट में बैठ रहे हो ना। तो अगर ड्रीम देखे हो अपने यूजी में जो फेल हुआ था 12th में, यू कैन अगेन कम बैक एंड परस्यू योर ड्रीम। हाँ। तो वो जैसा तुम्हारा एक। करेक्ट। आईआईटी बीएचयू में राइट। तुम्हारा है, आईआईटी बीएचयू में है, आईआईटी कानपुर हमारे सीनियर्स थे। तो pretty much हमारा जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है ना, वो अब हर आईआईटी पहुंच चुका है। तुम सिर्फ लिंक्डइन में सर्च करोगे ना एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और कोई आईआईटी का नाम, तो तुम्हें मिल जाएगा, कोई ना कोई सीनियर से तुमसे गाइडेंस ले सकते हो कि आप। एक काफी गुड करियर चॉइस है देखा जाए तो, लाइक अ पर्सन हु डिडंट लाइक परस्यू हिज स्ट्रीम इन ग्रेजुएशन, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन में अपना ये आईआईटी उससे के थ्रू ड्रीम पूरा कर सकता है। एक वो अच्छी बात है, और तुम्हें स्कॉलरशिप मिले, मैं स्कॉलरशिप बार बार बोलूंगा स्कॉलरशिप तो है ही, हाँ तो स्कॉलरशिप तो बाकी अगेन तो इट्स प्रेटी मच फैमिली से कुछ लेना नहीं पड़ेगा, फैमिली से कुछ नहीं लेना पड़ेगा, तुम्हारे फैमिली से दोस्त कुछ लेना नहीं पड़ेगा। इजिली मिल जाएगा, और तुमको एक्सपीरियंस मिलेगा आईआईटी का, जो इन्वायरमेंट मिलता है ना एलुमनी नेटवर्क, ये तुमको लाइफ में कहीं नहीं मिलने वाला है। तो तुमने, जैसे तुमने बताया तुमने मैनेजमेंट कोर्स चूज किया, व्हाई डिडंट यू चूज द टेक्निकल पार्ट? सो बेसिकली आई विल टेल, जैसे आई सिंह, मेरे को दो इंटरव्यू थे, आई एम मुंबई का और इसका आईसी, बाकी सब कहते हैं बेस्ड ऑन गेट स्कोर था, ठीक है। तो एज आई टोल्ड कि मुझे आईएससी इसलिए देना था कि मुझे प्रिपेयर करना था नीटी बॉम्बे के लिए, आई एम मुंबई के लिए प्रिपेयर करना था कि उसका इंटरव्यू अच्छा हो जाए। तो मैं यहाँ गया इंटरव्यू। सो इट वाज लाइक, इट वाज स्टार्टिंग में ग्रुप डिस्कशन। माय ग्रुप डिस्कशन टॉपिक बता के कि हमारे जो डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन काफी कम है, इट विल बेटर ऑडियंस शुड नो दैट दिस डिपार्टमेंट ऑफर्स, इट्स काइंड ऑफ मास्टर्स बिजनेस एनालिटिक्स, थोड़ा सा इसमें लाइटन अप करते हैं स्पोर्ट्स का, बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स है ये। इसमें सीट्स होते हैं 15, टोटल सीट 15। 15 comprises of 1 5, 15 comprises of CAT, GATE and GMAT. These three branches, these three exams only in tech. तो यहाँ पे ओके। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर सिविल या कुछ हो, सबका सीट तुमको आ जाके 70% जो परफॉर्म है कि वो कट ऑफ क्रॉस किया तभी तुम्हारा इंटरव्यू कॉल आ पाया है। तो तुम्हारा वहां हट गया चीजें। अब तुम 70% मार्क्स स्कोर करोगे, जो अच्छा स्कोर करेगा वही होगा। तो तुम्हें फाइट तो करना कैट के बीच में, जीमैट के बीच में, गेट में। गेट के बीच गेट नॉट एग्रीकल्चर, गेट इज कम्प्लीटली ऑल ब्रांचेस बात में करो, ऑल बैचेस के ठीक सबके है। तो टॉप वहाँ पे प्लेयर्स। कॉलम, हाँ टॉप जितने भी मतलब सीएस के जितने भी 800+ गेट स्कोर है, सिविल के जितने भी 800+ गेट सभी स्कोर है, ब्रांचेस। सभी ब्रांचेस। मतलब 800 लाइक ऑफ एवरेज, मतलब हर साल कांस्टेंट था 800 गेट स्कोर। अगर तुम ला रहे हो तो एलिजिबल हो कि वहाँ इंटरव्यू तुम दे सकते हो। तो वो तो ठीक है। तो मैं गया, तो मेरा टॉपिक था, बहुत इजी टॉपिक मिल गया, मतलब इट्स गॉड्स प्लान आई विल से, लाइक सोशल मीडिया गुड और बैड। तो ये तो हम क्लास 6 से ही कर रहे थे, सोशल मीडिया गुड और बैड, मतलब ये तो तुम कभी भी सो के भी अगर तुम पूछेगा तुम आराम से बता सकते हो। तो ये तो काफी अच्छा चला गया, मतलब इसमें ये चीज होता है ना, लोगों का ग्रुप डिस्कशन में क्या इशू होता है, तुम्हें ये नहीं कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स तुम एंटर किया एग्जिट किया हो, ये इंपॉर्टेंट, तुम जब एंटर किए तो तुम्हारे पॉइंट्स कितने इंपैक्ट रखते थे उस ग्रुप डिस्कशन में, वो चीजें ज्यादा काउंट होती है। तो वो ठीक था। फिर मेरा कहते हैं इंटरव्यू शेड्यूल हुआ कि हमारे दो 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 पैनल्स थे। ये फिक्स होता है आईएसएम, जैसे मैं भी इंटरव्यू कोऑर्डिनेट कर रहा था पिछले साल। तो हमारे दो ही पैनल्स होते हैं, एक एक फर्स्ट फ्लोर पे, एक सेकंड ग्राउंड फ्लोर पे, दो इंटरव्यू पैनल्स होते हैं। एक में एक कंप्राइज होता है तुम्हारा स्टैटिस्टिक प्रोफेसर, ठीक है, एक तो एक स्टैटिस्टिक इकोनॉमिस्ट और एक फाइनेंस के, एक ये पैनल होता है। एक होता है ऊपर ऑपरेशन रिसर्च के पैनल, और एक मशीन लर्निंग है, जो भी कहते हैं डेटा साइंस, मतलब तुम सुन रहे हो काफी, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, जीपीटी। तो उनके उसके प्रोफेसर थे, एक थे सस्टेनेबिलिटी के। तो मुझे ऑपरेशन रिसर्च वाले प्रोफेसर से, मतलब उनके पैनल में मिला मेरे को, उस पैनल में शेड्यूल हुआ। तो स्टार्टिंग वो प्रोफेसर ना इज नॉट लाइक कॉर्पोरेट, इफ यू लॉक कॉर्पोरेट में क्या होता है ना, समय नहीं सोचते नहीं, वो सीधा क्वेश्चंस क्वेश्चंस फेंकने फायर लग करते जाते हैं, आंसर फायर करते हैं। हैं, सीधा आंसर पूछ चाहिए। वो बेटी मतलब प्रोफेसर तुम समझ लो ना, और इन सब इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर ना काफी काम होते हैं, वो तुम्हें हेल्प करेंगे। तो वो जब मैं एंटर किया तो बेसिकली तुम्हारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो कभी भी इन सब एग्जाम, कभी इंट्रोडक्शन ना ज्यादा तुम लेंदी मत रखो, क्योंकि तुमको चीजें उस चीज में रखना है कि जो तुमको कहते हैं तुमको सिलेक्शन करवा सकती है, उन पर ज्यादा फोकस करो। अपने जैसे मैंने अपने फार्म मशीन प्रोजेक्ट जो मैं किया था लास्ट के 6 मंथ में, वो एक्सप्लेन किया अच्छे से। तो वो सब अच्छा था। थोड़ा आगे एक्सप्लेन कर दिया। तो वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या कोर्स है, मतलब एग्रीकल्चर ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। बेसिकली आईएससी में कोई डिग्री नहीं है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, मतलब कोई ऐसा कोर्स सिस्टम नहीं है। वहाँ सिविल इंजीनियरिंग के हैं, पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। तो वो भी प्रेटी मच कुछ पूछ रहे थे क्या होता है इस ब्रांच में, थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहे थे। फिर क्यूरियस थे, हाँ। हाँ, सब न्यू थिंग था लोग उनके उनके बेसिक। लिए न्यू थिंग था कि ये सब बच्चे भी अच्छे से कर रहे हैं, अच्छा करके आ रहे हैं, तो क्या है इनका, क्या पढ़ाया जा रहा है। तो अच्छा था। वो तुमसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तुम्हारे प्रोजेक्ट पे।
तुमने कैसे किया, अपने डिग्री क्या किया, डिग्री में क्या क्या पढ़े हो, तो उस पर प्रेटी मच फोकस्ड रहेगा। और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछें, जैसे ये डिग्री मास्टर इन बिजनेस एनालिटिक्स है, इस डिग्री के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो। है कि तुम्हें हम्म पता होना चाहिए जिस डिग्री के तुम जा रहे हो उस डिग्री का इन्फॉर्मेशन तुमको होना चाहिए बेसिकली। तो काफी मच था। तो सही रहा, मतलब एक लास्ट में एक क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था कि हमारे जो प्रोफेसर चेयरमैन थे ना, मुझे नहीं पता था वो चेयरमैन है, सो ही आस्क्ड हम्म मी, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस आके। हम्म So I was हम्म like, right now I don't have any question to ask, but when I will join ISC na, I will definitely have many question to ask. So it was like हम्म तुमने एक फ्रेम में बना दिया कि एक ऐसा बच्चा था, हम्म जैसे तुम हम्म माइंड में तुमने कैप्चर कर लिया, ऐसे तुम मोमेंट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि इंटरव्यू ना प्रेटी हम्म मच सबका सेम होता है। आई विल नॉट से दैट बट कुछ किसी एक का एक पॉइंट होते हैं जो वो इंटरव्यू को याद रह जाते हैं, या वो एक वो अलग अगर इम्पैक्ट तुमने अगर तुम क्वेश्चंस में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं बोल रहे हो, प्रेटी मच फ्लैट आंसर, अगर तुम रट रटाया कुछ, जैसे कोड़ा बहुत आंसर मिल जाएंगे, कोड़ा हम्म बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आंसर हटा देंगे, पर अगर तुम है कि हम्म सब आंसर वही सब बोलेंगे तुम वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे। और करेक्ट बेसिकली उसमें सेलेक्ट होते हैं 400 स्टूडेंट, शॉर्टलिस्ट होते हैं 400 में, स्टूडेंट 15 सीट्स है, तो तुमको कुछ तो अलग करना पड़ेगा। हम्म ऐसा नहीं कि सिर्फ 20 बच्चे सेलेक्ट हो, उसमें 15 बच्चे, 400 बच्चे तुमसे करेक्ट तुमसे है कम्पीट कर रहे हैं, तुमसे हर एक बैकग्राउंड के बच्चे हैं। सो यू हैव टू बी एट योर टोज, यू हैव टू बी एट योर बेस्ट टू परफॉर्म देयर। प्रेशर नहीं है, पर स्टिल यू हैव टू बी एट योर बेस्ट टू परफॉर्म देयर। तो अच्छा रहा। मेरे पता था नहीं होगा क्योंकि अब 400 हम्म बच्चे हैं, प्रीटी मच कैट हम्म फ्रेंड्स हैं, जी मैट के हैं, गेट के भी बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग कंपटीशन, ठीक है नहीं हुआ, एक्सपीरियंस अच्छा हुआ। जैसे आई एस सी जैसे इंस्टीट्यूट में घुसना ही बहुत बड़ी बात है कि टॉप इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट रैंक 1 है, 4-5 साल से रैंक 1 है, तो प्रेटी मच लाइक ठीक है, मैं एक्सपीरियंस ले लिया, जाना मेरे वाया मुंबई है। तो इसका जब इसका रिजल्ट आया, तो फाइनल तो रिजल्ट आया तो फिर हाँ रिजल्ट आया तो आई एम मेंबर तो आ चुका था मेरे को, जो आई एम मेंबर का कंफर्म था, मैं सब कुछ सीट बुक कर लिया था, सब कुछ हो गया था। हम्म तो हम्म इसका 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 डेट जो वापस लेने का था 20 मई था, 20 मई को अपना सीट वापस करता हूँ आई एम मुंबई से। 19 मई को ना आई एस रिजल्ट फोड़ा, हम्म उसमें आ गया नाम। तो अच्छा उसमें बोला अब मैं क्या करूं। तो आई वॉज हम्म नॉट प्रेटी मच प्रिपेयर्ड, लाइक अब क्या करना है, मतलब हम्म और करना तो है ही कुछ ना कुछ, हम्म या तो इसको डिक्लाइन करना ऑफर को आई आई सी बैंगलोर, क्योंकि मेरा माइंड प्रिपेयर हो चुका था आई एम मुंबई के लिए। मैं तो मुंबई मैं के फिर लिए सोचा कि मैं बैंगलोर में 4 साल रह चुका हूँ, थोड़ा सा कंफर्ट में आ चुका था मैं बैंगलोर में, हम्म तो लाइक यू कैन अगेन स्टे इन द बैंगलोर फॉर 2 more years। एंड आई हम्म एस सी का नाम तो सब जानते हैं, मतलब ऑलमोस्ट इफ यू आर इन द इंजीनियरिंग फील्ड ना, यू नो दैट आई एस सी इज प्रीटी मच। और मेरा थोड़ा हम्म सा मैनेजमेंट, आई एम लाइक दैट ऑफर्स मैनेजमेंट डिग्री, पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, वो काइंड ऑफ तो मैनेजमेंट वो डिग्री था। फर्स्ट टाइम ही कोर्स स्टार्ट किया था आईआईसी ने, या लाइक पहले भी करता था एक कुछ चलता था पर हमारे ब्रांच को पता नहीं था। ओके बहुत मतलब रेयर था, मतलब रेयर, मतलब उसकी ज्यादा न्यूज नहीं, आईएससी में जो ब्रांचेस है ना, ज्यादा ज्यादा मतलब कंप्यूटर साइंस ये सब ज्यादा फेमस उन बच्चों को पता है। हमारे ब्रांच को सिर्फ ये पता है कि एक आई एम मुंबई है, आईआईटी केजीपी है, यही सब आईआईटी, मतलब जो ओल्ड आईआईटी यही पता है, आईएससी बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं। पर इफ यू टॉक अबाउट अदर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, दे नो प्रीटी वेल लाइक आईएससी क्या रखती है। इफ यू आर गोइंग फॉर मास्टर्स, आईएससी इज द बेस्ट, दैट आई विल से। यहाँ पे तो यहाँ पे किया, यहाँ से फिर ऑफर ज्वाइन आया, किया तुमने उधर 2 साल, इट वाज अ 2 ईयर प्रोग्राम। दैट तो वाज प्रोग्राम। जैसे अभी हम सब जानते हैं, एक्सप्लिसिटली रिवील करना चाह रहे हैं, मिस्टर साकेत कुमार का पैकेज अप्रोक्सीमेटली 17 lakhs पर एनम है, एंड ही इज करेंटली वर्किंग इन मुंबई इन अंडर कोटक बैंक। सो कैसे वो एक माइंड सेटअप, कैसे इतना लाइक बीइंग, हमारे को इतना नहीं रहता एग्रीकल्चर स्टूडेंट, हाईली वी थॉट अबाउट कि यार 10-12 लाख का पैकेज लग जाएगा, बट बीइंग लाइक फ्रॉम एग्री स्टूडेंट, फिर उसके बाद मैनेजमेंट में गया, दो इट्स फ्रॉम अ रियली वेरी टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, तो उसके बाद हाउ यू रीच टू 17 lakhs पर एनम पैकेज, कोई एक्स्ट्रा स्किल सीखा या कॉलेज से ही ये सब चीजें हेल्प हुई, कैसा एनवायरनमेंट था उधर, ये सब कुछ ब्रीफली डिस्क्राइब कर सको तो। श्योर श्योर। सो मैं जब एंटर किया कैंपस, तो हमारे कोर्स था प्रोबेबिलिटी बेसिकली। जो आईएससी प्रोफेसर होते हैं ना, मतलब वो लाइक दे विल नॉट स्पून फीड यू, वो स्टार्ट ही हम्म ऊपर से ही करते हैं, मतलब दे आर प्रीटी मच कॉन्फिडेंट अगर आए हो तो मेहनत करोगे। सो हम्म ये मतलब ये मत सोच के जाना कि अगर तुम टॉप 10 हो तो वहाँ चीजें बहुत लाइफ आसान रहेगी, ये बिल्कुल नहीं है। वेदर इट्स आईआईटी केजी, आईआईटी बॉम्बे, आईएससी की चीजें आसान तो कहीं रहने वाली नहीं है। इफ यू आर वर्किंग हम्म जॉब ऑल्सो, इफ यू सेव जॉब, तो जॉब में एंटर के जॉब लाइफ भी आसान नहीं है, तुम्हें 4-5 महीने सीखने मिलेंगे। सो व्हेन आई गिव द, हमारा जो आई आईएससी कल्चर क्या है ना, जैसे प्रोबेबिलिटी एग्जाम का कल्चर बताता हूँ, वहाँ तो ओपन बुक, बेसिकली यू कैन ब्रिंग एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट, एग्जाम में आगे कुछ भी लेके आ जाओ, तुम एग्जाम दे दो। पर हमारे प्रोफेसर हम्म भी चालाक है, तो वो हम्म क्वेश्चंस ना
बिल्कुल न्यू बनाते हैं. तुम ऑनलाइन कहीं भी खोलो नहीं मिलेगा क्वेश्चन. यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. इफ यू आर नॉट फोकस्ड ऑन स्टडी तो कुछ भी कर लो. तो वो आया मिड टर्म रिजल्ट है हमारा. तो अराउंड 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ था. उसमें आए थे मेरे 40. ठीक है. 40 इज लाइक, इफ यू टॉक अबाउट बाहर की दुनिया में ना, 40 इज लाइक खराब मार्क्स. लाइक ठीक है, 40 है, पर ठीक है. पर हमारे आईएससी आईआईटी में क्या होता है, वो होता है एब्सोल्यूट मार्किंग नहीं होता, वो होता है रिलेटिव मार्किंग. मतलब रिलेटिवली होता है, मतलब कितना अच्छा परफॉर्म किया उस बच्चे से कंपेयर. उसको 100 मार्क्स मिल जाए तो टॉप किया, उसके बेसिस तो मार्किंग डिसाइड होता है. जब हमारे जो 40 मार्क्स है, मैं थोड़ा सेटबैक हुआ था कि ठीक ठाक कर रहे हो परफॉर्म, पर ये क्या सही है? क्योंकि हम उस बबल में जी रहे थे. हम गेट रैंक तो ला लिए थे, काफी बबल हो गया था लाइफ में कि काफी अच्छा चल रहा है सब कुछ. पर ये सब जो ठीक है, पर तुम जहां आए हो अपने डिसीजन को प्रूव भी तो करो. तो वहां पे भी बहुत मेहनत करना पड़ा. आई विल नॉट से इट वाज लाइक फर्स्ट 6 मंथ वाज प्रीटी टफ फॉर मी. क्योंकि तुम ऐसे कोर्स में आए, इस कोर्स में था कोडिंग. आई विल से लाइक इट इज वन ऑफ द गुड कोर्स ऑफ डेटा साइंस जो आईसी प्रोवाइड करती है बिजनेस एनालिटिक्स का. इसमें इसमें प्रीटी मच मैनेजमेंट का भी तुम्हारे फील्ड का फ्लेवर आता है. इसमें तुम्हारा टेक्निकल का फील्ड आता है. इट्स काइंड ऑफ ओवरऑल ऑफ ऑल द फील्ड्स टेक्निकल. फर्स्ट सेम में तुम्हारे क्या आते हैं, मैनेजमेंट के सारे कोर्स खत्म हो जाएंगे. सेकंड सेम में तुम्हारे मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, डिसीजन, डेटा माइनिंग, डिसीजन साइंस, दीज ऑल द कोर्सेज विल कम. सो ये सब जो कोर्सेज है ना, ये तो एक कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि बीइंग लाइक जितना बीइंग देयर इन टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टू द बीइंग इन टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, कभी ऐसा फील नहीं हुआ कुछ डिफरेंस या ऐसा कुछ कि यार, क्योंकि वहां पे तुम ब्रिलियंट माइंड्स के साथ हो पूरे इंडिया के, तो कहीं उनसे कॉम्पीट करने में एक एक्स्ट्रा पुश लगता है और एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, और ये सब जो बीइंग इन एग्री ग्रेजुएट इतना अपने को नहीं पता है, लाइक वी डोंट डिस्कस मोर अबाउट डेटा साइंस एंड ऑल दोस थिंग्स. तो एक कम्प्लीटली वो रैंडम फील्ड चूज करना, उसके बाद भी उसमें एंडल होकर इतना अच्छा अपस्केल करना खुद को, इट वाज हाउ डिड यू मैनेज ऑल दोस थिंग्स? वर्क प्रोफेसर्स गुड, और कुछ एक्स्ट्रा तुमने कहीं कुछ गाइडेंस लिया या कुछ सीख किया, स्किल ली, ऐसा कुछ? सो बेसिकली पुश तो मारना पड़ेगा, क्योंकि वी आर कमिंग फ्रॉम दैट ब्रांच. वी आर नॉट फेड दैट कॉन्शियस. अगर कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो ना वो, तो उनके लिए काफी मत स्मूथ सेलिंग पोर्ट होगा. पर हमारे लिए तो भाई मतलब इट्स काइंड ऑफ थंडर स्टॉर्म. यू हैव टू बी एवरी डे, यू हैव टू बी ऑन योर टोज. बट फर्स्ट 6 मंथ वो मेहनत करना. ये फर्स्ट 6 मंथ तुमने चीजों को कवर कर, देखो कोडिंग इज काइंड ऑफ लाइक प्रैक्टिस. फर्स्ट डे लगे कि कैन आई डू द कोडिंग, बट आफ्टर 30 days ना आई कैन डू द कोडिंग, ऐसा चेंज हो जाता है. सो मैं इसलिए बोला कि मेरे को कोडिंग ऐसा कुछ नहीं था. वी वेर टॉट इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग. फर्स्ट से में माय फ्रेंड Sarup also knows, he also coding, but बेसिक like था वो. passing, we are just interested in passing. तो मेरा भी सीन बस यही था. पर आप तो तुम्हें कैरियर बनाना है तो तुम्हें करना तो पड़ेगा. फिर मशीन लर्निंग, इस सब में मैथमेटिक्स ज्यादा होता है. हम लोग एग्रीकल्चर में उतना मैथमेटिक्स टच नहीं करते हैं. पर जो मैं बताता प्रोबेबिलिटी, जैसे मैं बताया, प्रोफेसर सब काफी डीप में जाते हैं. तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स अगर तुम सही में लग गए ना, तो यू कैन नो द वैल्यू ऑफ दिस ऑल सब्जेक्ट्स. वो जो वैल्यू मिलता है ना इन सब सब्जेक्ट से, वो तुमको बहुत, मतलब ये नहीं कि तुम्हें प्लेसमेंट्स या इसमें हेल्प करेगा, तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ सिखा देगा. और तुम्हें जो करेक्ट है. आज मैं एल्बम में जो हमारे जो बैचमेट्स थे ना, वो भी काफी सपोर्टिव थे. इफ यू टॉक अबाउट लाइक आवर बैचमेट्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रेशर्स ही थे. कुछ कुछ 4 साल के एक्सपीरियंस भी थे. कुछ गवर्नमेंट जॉब छोड़ के भी आए थे. ऐसा नहीं है कि अच्छे अच्छे पोजिशन छोड़ के आए, क्योंकि इस डिग्री, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस डिग्री की वैल्यू क्या थी. आई एम जस्ट टेलिंग हाउ इट वाज वाइटल फॉर द पर्सन हु इज ज्वाइनिंग दिस कोर्स. बहुत सारे सैमसंग R&D हेड थे, वो क्या थे, पीएचडी करे थे हमारे ब्रांच से. सो लाइक प्रीटी मच यू विल बी इन दैट कम्युनिटी, दोज हु आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी, दोज दोज आर वर्किंग. ब्रिलियंट माइंड्स. हाँ. करेक्ट. तो वैसे लोग थे. तो वो काफी अच्छा रहा. मतलब स्मूथ सेलिंग तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मेहनत तो कभी बहुत अपने करी. आप को ऐसा तो नहीं लगा कि यार एकदम डिफरेंस तो फील नहीं हुआ कि, या तुमने देखो, कि भाई? हाँ, वो फर्स्ट मंथ में बिल्कुल होगा, सच है वो, क्योंकि यू आर टेकिंग दैट ब्रांच दैट इज नॉट प्रीटी मच कोरिलेटेड विद योर ब्रांच दैट यू हैव स्टडीड इन 4 years. इन योर ग्रेजुएशन? ठीक है, अगर तुम IIM मुंबई से जाते तो बहुत इजी रहता, कहीं सबको काफी डिफरेंट चीज पढ़ना है, तो ऑलमोस्ट सबका प्रीटी मच सेम रहता है. वहां पे तुमको केस स्टडी करना है, पर यहाँ टेक्निकल एस्पेक्ट ज्यादा पढ़ना होता है. तो तुम्हें मेहनत तो करना, मेहनत किया मैंने. काफी लोग सब मेहनत करते हैं. अगर IISc आ रहे हो तुम तो अच्छा ही करने आए हो. अच्छा ही करना है. बिल्कुल अच्छा करना है. तुम ऐसे कॉलेज ले रहे हो, तुमको पता है मेहनत. तुम कहेगी तुम 2 साल जो गेट प्रिपेयर किया ना, तुमको बॉडी बन चुका है प्रिपेयर करने की. तुम अच्छा हमेशा कर सकते हो लाइफ में. तो वो तुम्हारा एक माइंडसेट डेवलप हो चुका है. तुम लगे रहोगे, ये चीजें डेवलप होगी. तो और वो चीज मेरे को बहुत हेल्प की. वो जो कंसिस्टेंट स्टडी करना प्रीटी का. अगर फेल हो रहा है लाइफ में, मैं बताया 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 इज लाइक pretty much same for the society in the if you talk come out of this ISC और IIT, बिकॉज वहां पे एब्सोल्यूट मार्क्स सोचते हैं. पर यहाँ पे रिलेटिव था, और उसमें हाईएस्ट 60-65 ही जाता है. तो 40 इज लाइक काइंड ऑफ गुड मार्क्स ऑल्सो.
तो मेरे काफी प्रीटी मच बी बना लिया उस सब्जेक्ट में। तो इज लाइक अब पर बी से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू वांट टू बी एक्सेल। तो मैंने हार्ड वर्क किया। जैसे हमारी छुट्टी हुई थी दिसंबर में, 1 मंथ का ब्रेक होता है, सेम ब्रेक, तो मैं घर नहीं गया। सो आई वाज लाइक, क्या कि मेरे छोटे, क्या कि मैं बहुत लोगों से दूर, क्या मैं एग्रीकल्चर का अकेला बच्चा था उस पूरे बैच में। तो आई वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। लाइक मैंने जो पढ़ा है अपने 4 साल। अब यू टॉक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट्स आते हैं ना, उनके लिए काफी आसान है क्योंकि वो 4 साल पढ़ाई करते हैं, पर हम नहीं पढ़ाई करते हैं सच। तो तुमको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। तो मैंने पुश किया। फिर हमारी इंटर्नशिप्स आई, तो इंटर्नशिप में तो कोडिंग कोडिंग इंटरव्यू होता है, कोडिंग राउंड होता है, तो वहाँ बैठना पड़ेगा तुम्हें। तो तुमने अगर ये 6 महीने यूज नहीं किया ना, तो वहाँ पे तुम फेल करने लगोगे, तुम्हें कहते हैं डिप्रेशन होंगे, क्या कि और बहुत सुसाइड्स बढ़ रहे हैं लोगों के। मतलब इफ यू टॉक अबाउट ना, इन आईआईटी जाके भी लोग उतने खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? वो एक बबल में लेके जाते हैं कि वहां जाएंगे तो प्लेसमेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सब लाइफ कुछ इजी होगी, वहां जाने के बाद शॉर्ट हो जाएंगे, बट वहां पे भी ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। यू हैव टू डू हार्ड वर्क देयर ऑल्सो। तो यही बोल रहा हूँ कि वहां जाके अगर तुम फेल करो तो कोई नॉर्मल बात है, सब फेल करते हैं। और हम जैसे ब्रांच के लोग ज्यादा फेल करेंगे क्योंकि वी आर नॉट यूज टू दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। एक्सपोजर नहीं है उस टाइप एक्सपोजर का। नहीं, करेक्ट, एक्सपोजर इज अ करेक्ट वर्ड, कि वो हम नहीं है, एक्सपोजर नहीं है। तो हमने इंटर्नशिप दिया, अच्छा खासा, मतलब बॉश में लग गया था, रॉबर्ट बॉश में। वहां भी डेटा साइंटिस्ट का पोजीशन मिल गया, जून में लग गया था, तो काफी सही रहा। फिर थर्ड सेम आया, तो थर्ड सेम हमारी फाइनल कंपनी, अक्टूबर मंथ से हमारे आईएससी प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे तुम सीवी प्रिपेयर करो। तो काफी मतलब उनका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये था एग्रीकल्चर इंजीनियर से ये क्यों। ये मेरा प्रोफेशन नहीं पूछा था जब मैं पहली बार इंटरव्यू दिया था, और मेरे कंपनी से पूछते थे। तो तुम्हें क्या था, जस्टिफाई तो करना पड़ेगा। पहला आंसर जो अगर क्वेश्चन आएगा, ताकि तुम्हारे लिखे होंगे डिग्री, तुमने बीटेक कहाँ से किया है। अगर तुम मेंशन एग्रीकल्चर नहीं भी करोगे ना, हमारी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस बैंगलोर है, तो उसमें एग्रीकल्चर एज ए कीवर्ड वो पकड़ लेते कि एग्रीकल्चर बच्चे हम क्यों हायर करें, व्हाट इज द रीजन। तो तुम्हें, जैसे मैं क्या सोच के रखा था ना, मेरा आंसर क्या था कि व्हाई डू वांट टू सिलेक्ट एग्रीकल्चर एज ए डेटा साइंटिस्ट। सो फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट, इफ इट एग्जाम क्रॉप, क्रॉप में ईल्ड आता है। तुम अगर क्रॉप के टेम्परेचर, सॉइल क्वालिटी, मॉनसून और वेदर वेदर ये सब डेटा का इनपुट कर दोगे, एक मॉडल बना दोगे तुम। बेसिकली एक मॉडल, डेटा साइंटिस्ट नथिंग लाइक प्रेडिक्टिंग द मॉडल, प्रेडिक्टिंग द आउटपुट। तुम्हारे पास सारे डेटा है, उसका आउटपुट उसका प्रेडिक्ट। आउटपुट कैसे जनरेट हाँ करना करेक्ट, डिफरेंशिएशन करके, डिफरेंट डिफरेंट, और भी डीप में जाओ बहुत लंबा चल जाएगा। प्रीटी मच है। शॉर्ट, लाइक वो प्रेडिक्ट करना, तो हम क्या ईल्ड प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर तुम ऐसे आंसर्स बनाकर रखोगे ना, तो तुम्हारा प्रेटी मच, फिर तुम्हारे तुमसे पूछेंगे कि अगर तुम यहीं पे फेल कर गए ना, कि एग्रीकल्चर चेंजिंग जो एम्प्लॉयर्स होते हैं ना कंपनी सब, वो भी खुद चौंक जाते हैं, ये कौन सा ब्रांच आ गया इसको हम हायर करने वाला है। तो ये तो होने वाला है, मतलब हमेशा होने वाला है। तो तुम्हें ये बट तो तुमने सोच, एज ये सबके दिमाग में डाल दिया कि हाँ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी कुछ है। ये तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम यहाँ पे आईआईटी में हाँ। आया तो फाइट तो करना पड़ेगा कि यहाँ पे तुम ब्रिलियंट माइंड के बीच में फाइट करो। ये नहीं कि अब सबको चाहिए हायर प्लेसमेंट, सबको चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो तुम्हें वहां तो अपना जगह बनाना पड़ेगा। जगह बनाने के तुम्हें अपने आंसर्स ऐसे रखना, ये नहीं कि तुम्हें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पे छाट दे। तुम्हारे अगर तुमको छाटना होगा ना, तुम्हारे क्वालिटी ऑफ तुमने जो स्टडी किया उस पर छाटे, ये नहीं कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में छाटे। ये प्रेटी मच माइंड बनाना पड़ेगा। अगर तुमको छाटे तो तुमने जो आंसर्स बोला ना, मशीन लर्निंग जो सब आंसर देना उस पर छाटे। ये नहीं कि तुम्हारे एग्रीकल्चर इस पे छाटे तुमको। तो ये तुमको बनाना पड़ेगा सही। अपने माइंड से। तो ये ब्रांच का माइंड से थोड़ा चेंज करो कंपनी के सामने, अगर तुमसे क्वेश्चन आए। सिर्फ कोटक का ही था या और भी बहुत सारे इंटरव्यूज नहीं, फेस किए थे? मैं बैठा 3 या 4 कंपनी से बैठा था। तो ओके। एक एक थी इक्विनिक्स जो डेटा साइंस मैनेज करते, बहुत लार्ज फर्म है। हम्म। उसका क्या था ना, उसमें 3 ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं, मैं था और 2 बच्चे थे। तो वो तो हम्म। काफी अच्छा था। मतलब अगर तुम ऐसे ब्रांच से आ रहे हो, तुम सेलेक्ट ही 2-3 बच्चे और उसमें तुम आ गए, तो प्रेटी मच कॉन्फिडेंट। भले उसका कहते हैं कुछ तो इश्यूज था उसके ब्रांच में, उस कंपनी के साथ, तो उसने किसी को हायर नहीं किया, वो अलग बात है। पर ये सब जो प्लेसमेंट्स है ना, इसमें होगा ऐसे टाइम जब शॉर्टलिस्ट नहीं होगे, तुम्हारा सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। पर यही है ना, तुमने अगर गेट एग्जाम देख लिया ना, ये सब कुछ नहीं तो लगता है। बाकी सब नॉर्मल लगेगा। बाकी सब यार ठीक है यार, क्या ही है, अगर तुम ऐसे हम्म। कॉलेज में पढ़ लिए ना, यही तुम्हारे लिए एक्सपीरियंस हो गया। तो ये सब तो एक्सपीरियंस था। हाँ, हम्म। तो ये सब रहा। तो कोटक आई। कोटक इज लाइक, मैं भी, मैं बोला ठीक है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, जो होगा देखा जाएगा। हमारा साल काफी खराब था वो साल ना। कोविड कोविड में बहुत हायरिंग हुआ था। फिर इसका 2023 हाँ, बात का ईयर, बहुत ले फायरिंग आउट्स हुआ हो था, रहे थे। लेऑफ्स बहुत हो रहे थे। तो मुझे भी लगा, मैं भी घर चला गया मस्त, क्योंकि मैं कॉलेज में ऐसे पढ़ लिया था, मेरा माइंड हो चुका मिले तो मिले, नहीं मिले तो ठीक है, वो भी बैलेंस है। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं कि प्लेसमेंट चाहिए ही इस कॉलेज से, ऐसा कुछ। तो मैं आराम से घर पे था, तो कोटक महिंद्रा आई। तो इसका इसका मेरे को पता, वो तो निकाल लूंगा मैं, कोडिंग राउंड बेसिकली, क्योंकि अगर तुम 6-7 महीने अच्छे से कर लिए ना प्रिपेयर, तो यू आर प्रीटी मच कॉन्फिडेंट है कोडिंग क्वेश्चन कुछ भी आए ना तुम सॉल्व तो कर सकते हो। यू कैन प्रीटी मच कंपेयर विद द सीएस गाइज। ये सब तो मैंने किया अच्छे से। तो कोटक का इंटरव्यू, कोटक में जैसे मैं बताया,
हर ब्रांच हर कंपनी मेरे से पूछते एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्यों, व्हाई एग्रीकल्चर, तो मेरे को जस्टिफाई द आंसर हर बार करना पड़ता था। फिर जस्टिफाई कर दिया तुमने, हाँ। अगर तुमने कर दिया ना, फिर तो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स है ना, जैसे मैंने हम्म, स्टैटिस्टिक प्रोजेक्ट रखे थे, कुछ कुछ प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग के रखे थे, ये सब उसके बारे में प्रोजेक्ट पूछा जाता है। उसके बारे में पूछा। तो मेरा इंटरव्यू बाकी लोगों का 40-50 मिनट चला था, मेरा सिर्फ इंटरव्यू 15 मिनट चला था। तो लाइक ठीक है, हम्म, होगा तो होगा, नहीं होगा तो वो भी ठीक है, कोई नहीं, मैं घर पे हूँ, मजे कर रहा हूँ, मस्त ठंडी चल रहा है, रजाई में सो रहा हूँ, हम्म, ठीक है। क्योंकि मैं सही है। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के बाद घर गया था, 1.5 ईयर हो चुका था मेरा घर गया हुआ, तो मैं घर गया था, कोर्सेस ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, तो प्रीटी मच सॉर्टेड। हमारे जैसे कोर्सेज एमबीए में क्या होता है ना, आईआईटीज इफ यू टेक अबाउट, वहाँ पे होता है फर्स्ट ईयर से कोर्सेज होता है, पर हमारे कोर्स हमारे डिपार्टमेंट ऑफर करती है थर्ड सेम तक, फर्स्ट सेकंड ईयर फर्स्ट सेम तक। ये ओके। प्रीटी मच डिफरेंट है ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि हमारे कोर्सेज काफी अलग है, और ये सबसे यूनिक कोर्सेज है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। आप बहुत आईआईटी स्टार्ट करें इनको देख के, आईआईसी को देख के, क्योंकि ये जो था ना 2011 बिफोर, ये एमबीए कॉलेज ही था, मास्टर बिजनेस एडमिशन, जो तुम्हारे इफ यू टॉक अबाउट आईएम जो ऑफर करता है, एग्जैक्टली सेम था, आईएम बैंगलोर ऑफर करता है, पर इन्होंने चेंज किया क्योंकि इसका डिमांड 2011 से आ चुका था, इस प्रोग्राम का, डेटा साइंस मशीन लर्निंग, तो 2011 से ये कोर्स पूरा चेंज हो गया। तो वो काफी तो सेलेक्ट हो गया, सही रहा। फिर एक अच्छा रहा, मतलब घर में ठीक था, मतलब ठीक है 70 lakhs, ठीक है फाइन, बट माइंड में कुछ और नंबर चल रहे थे, क्योंकि तुम ऐसे अच्छा कॉलेज अच्छा। जाओगे तो सेटिस्फाई तो नहीं होता है, पर ठीक है, इफ बट लुकिंग ग्रोथ एट अच्छी है आगे, बिकॉज ऑल द करियर अराउंड, लाइक अब देख रहे हैं जिस हिसाब से एआई ग्रो कर रहा है एंड ऑल द द अबाउट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट डेटा एंड ऑल, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इट्स लाइक वेरी गुड जॉब इफ वी करेक्ट कंसीडर। करेक्ट एंड कभी 100%। सोचा भी नहीं होगा कि बीइंग एग्री ग्रेजुएट, तो दो फ्रॉम वही एन है, अलाइड, उसके बाद भी इतना अच्छा मानना, और वो भी इतनी कोर फील्ड में, जो कि जनरली जो कोर करेक्ट एक बीटेक से करते हैं, एमबीए से करते हैं, वो भी नहीं इसको परस्यू कर पाते हैं। So we are really proud of you and like you like really inspire us. तो वन एक फाइनल क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा तुम्हारा। तो बेसिकली लास्ट एक एडवाइस जनरली जो भी है स्टूडेंट्स अभी जो परस्यू कर रहे हैं, वेदर दे शुड चूज एग्री इंजीनियरिंग एज देयर करियर पाथवे, और उसके बाद भी इज इट अ गुड डिसीजन, क्योंकि हमारी सीरीज का मोटो क्या है, इफ नॉट नॉट इट। एको देन व्हाट, देन तो उनके पास क्या क्या जनरली ऑप्शंस रहते हैं, तो इज इट अ गुड फॉर एलाइड स्टूडेंट्स बीइंग स्पेसिफिक इन एग्री इंजीनियरिंग, what all pathways, what are your advice, what's your wisdom to share? सो बेसिकली अगर तुम मेरा अभी तो इतना सुने होगे कि मैंने इतना फेलियर्स देख चुका लाइफ में, और फिर रिजल्ट्स काफी कम है, कुछ कुछ पार्ट्स में रिजल्ट फेलियर्स काफी ज्यादा है, और मुझ जैसे अगर इफ आई कैन डू ना, आई कैन एक्सपेक्ट दैट एवरीबडी कैन डू। और इफ जस्ट बेसिकली वन एडवाइस है, भगवान में भरोसा रखो, वो तुम्हारे लिए कुछ रास्ता अच्छा ही सोचे है, ठीक है, जो डिसीजन मिल जाए वो एक्सेप्ट करो, क्योंकि उसी में तुम्हारा पाथवे है। पर हाँ, उससे पहले हार्डवर्क तुम्हें नहीं छोड़ना है बेसिकली। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इज द बेस्ट ब्रांच इफ यू टेकिंग अबाउट एग्रीकल्चर फील्ड। अगर तुम इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हो, अगर तुम्हारा गेट एडवांस नहीं निकला है, यू कैन टेक एज अ कैरियर ऑप्शन, बिकॉज इसमें जो ऑप्शन जैसे मैं बताया डिफरेंट आई आई तुम्हारे सेटबैक्स हो चुके लाइफ में, पर उसको तुम ओवरकम कर सकते हो, अपने फैमिली को फिर से प्राउड कर सकते हो, फिर से वापस तुम वो चीजें कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो अपने अपने आपस के, कि तुम्हारा कैरियर वहां खत्म नहीं हुआ 12th में, पर वो जो सेटबैक था ना वो काफी मतलब वो मतलब जिंदगी थोड़ा सा 2 साल पीछे चल जाता है, कि तुमने क्यों स्टार्ट किया जे एडवांस, क्यों दिया, मतलब वो डर छा जाता है दिमाग में, वो डर से I ओवरकम। was very I shall you share you a story, like मेरे साथ जो बीती है, my brother, younger brother, now actually he is in IIT BHU pursuing electrical and electronics engineering. तो जब वो ही वॉज इन द प्रिपरेशन फेज ऑफ 11th एंड 12th, आई जस्ट सेड हिम तुम बस एग्री इंजीनियरिंग चूज कर ले, तो अगर तेरे को अभी आईआईटी नहीं मिला तो तेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन में तो मिल ही जाएगा समहाउ, बिकॉज करेक्ट वी हैव करेक्ट लुक्ड एट यू लाइक पीपल यू वर स्टडीइंग, एंड वी हैड होप कि हाँ, कि तुम्हारे ड्रीम्स उसके बाद भी अचीव हो सकते हैं, जरूरी नहीं करेक्ट। ग्रेजुएशन आईआईटी से नहीं किया तो, बट पोस्ट ग्रेजुएशन यू कैन हैव अ गुड लक। तो दैट्स नॉट लास्ट रीजन, वो लास्ट रीजन नहीं है, लास्ट नहीं है वो लाइफ का। हाँ, तो वही मैं बोलना नाउ चाहता हूँ बच्चों को, कहते हैं वो लास्ट डिसीजन नहीं, तुम्हारा जे एडवांस अगर फेल हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं, लाइफ में इतने मौका मिलने वाले हैं तुमको, आईआईटीज आईआईएससी कहीं पढ़ने का इतने मौका मिलेगा, लाइफ लाइफ विल ऑलवेज गिव ए चांस, बट यू नो व्हेन इट यू हैव टू ग्रैब इट, उसमें तुमको खड़ा रहना पड़ेगा कि वो दरवाजा खोलना है। तो वो काफी मतलब तुम्हें डिसीजन मेकिंग या तुम्हें ये सब रास्ते ना, आई थिंक माई लाइफ वॉज प्रिटी मच कैन बी समराइज इन प्रिटी मच समराइज। तो जैसे मैं बता रहा था, जैसे मैं आईआईसी के खत्म हो रहा था, एक मस्त एक अच्छी स्टोरी मैं बताता हूँ, जस्ट अ स्मॉल स्टोरी। लाइक आई वाज कंप्लीटिंग माय डिग्री फ्रॉम आईआईसी, तो काफी सही था, तो आई गॉट ए कॉल फ्रॉम प्रोफेसर द्रोणाचार्य मारवी, लाइक वी हैव अ एल्मा मीटर मीटअप, ठीक है, तो एल्मा मीटर मीटअप था, मेरा अगले दिन वो था, फाइनल फाइनल वाइवा था अपने प्रोजेक्ट का,
वो भी pretty much important था. So मैं पहले मना कर दिया, फिर मैं सोचा कि लाइफ ने इतना मौका दिया है ना, इस मौका हाँ, को ग्रैब कर ही लो. सो आई थॉट हम्म, लाइक सर आई विल बी कमिंग. सो मैंने ऐसे शेड्यूल किया. मेरा 3 PM में वाइवा था, और मुझे 11 बजे अपने कॉलेज यूजी कॉलेज पहुंचा था, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस. जब मैं पहुंचा ना, सो लाइक माय प्रोफेसर केम एंड वो पहले अपने कार से आए, मुझे कहते बैठाया गाड़ी में और मुझे वाइस चांसलर से मिलाने गए. सो इट्स हम्म. लाइक it can't be explained like So proud moment. can't like my family was also unexpected, and when I see हम्म, my name in the paper, like they prepared the paper, in that chief guest was name written, like हम्म, कुछ तो कर दिया मैंने, गेट एक तक ठीक एल्यूमिनाई कर. वाला फील आया प्रॉपर. लाइक मैं कुछ तो कर दिया हूँ, मतलब ये अपने वाइस चांसलर से मिला, अपने डीन से मिला, और उनके साथ बैठा, उन्होंने मोमेंटो दिया, फिर अपने स्टूडेंट्स, अपने बैचमेट्स को या अपने जूनियर्स को फिर अपने मतलब स्पीच दिया. वाज लाइक क्वाइट लाइक, बिकॉज ऐसे देखा जाए ना लाइफ को, वो मोमेंट्स पूरे समराइज कर दिया मैंने. रिमार्केबल मोमेंट हो गया एक तरीके वो से. पूरी मोमेंट समराइज कर दिया उस लाइफ, उस पूरे इतना हार्ड वर्क था ना, आई थिंक समराइज ऑल माई वर्थ लाइफ. इट था वो. वो वर्थ ही था. तो अगर तुम ऐसे ही करते रहो ना, जस्ट बेसिक तुम बेसिक स्टेप्स ही उठाओगे ना, लाइफ तुम्हें अपने रिजल्ट्स थोड़ी देर बाद से देगी, पर देगी जरूर. जस्ट आई वांट टू देगी से जरूर. यही मिलता उन्हीं को जो मेहनत करते हैं. मेहनत करते हैं. बट थैंक यू सो मच साकेत. एक मैं क्वाइट रिकैप कर देता हूँ तुमने जो भी लाइक फॉर द व्यूअर्स एंड फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स कि हाउ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम जेई फ्रॉम फिटजी देन didn't to got admission in NIT Patna if I'm not wrong. करेक्ट. From after that coming to switching that वो छोड़ के डिसीजन छोड़ के US Bangalore then pursuing BSc Agri Engineering from that preparing from Trans Easy all the coaching all the books we will mention in the pin comment also. उसके बाद choosing ISC data analytics then coming to that job part ISC pursuing now in Kotak Bank, having good annual package of 17 lakhs. It's a quite a great journey, like which inspires so many students. So I also wish that you achieve more heights in your career again, थैंक यू. थैंक यू. and like that inspire us. So thank you so much once again, Saket, थैंक यू for सो your मच. time. Uh, and we'll bother you again if श्योर students श्योर have श्योर श्योर balled श्योर out. श्योर. We are very privileged to have you as a friend, yeah. या It was a great talking to you, Saket. श्योर श्योर. Uh, थैंक्स. thank you. Thank you.